Yeah. Good evening, everybody. Welcome to this webinar for UGC NET and how to crack, it in the first attempt. We are joined by a great educator, by the way, Dr. Priyanka Sharma. I am Tamanna Nangia from S Chan. I'm an editor, and I have worked with Dr. Priyanka Sharma on her two books, which are UGC NET Education and UGC NET Paper 1. Before I, hand over the mic to Priyanka Sharma, ma'am, let me tell you all a little bit about SCHAN. We are a knowledge corporation since 1939, and we have been the largest, one of the largest academic publishers since then. You must know us from Renan Martin, Lakmeer Singh, and R.S. Agarwal. Uh, this new segment that we are starting is UGC NET, and we hope that we are able to help the students in the way that we have helped with R.S. Agarwal, Renan Martin, and Lakmeer Singh. Another thing about SCHAND is that we have always been interested, and very much active in helping the students with their exams. So we also have books for different examinations like UPSC, SSC, RRB, and others. We are also coming up with some new books in UGC segment. But before I tell you about anything else, let me tell you about the person you all have joined for, Dr. Priyanka Sharma. Uh, she is a professor by profession. She has done her PhD, MPhil, MA, MEd, and has cracked NET JRF examination. She is from the renowned Punjab University, where she worked as, SRF, and she did her PhD from there only. Uh, one, a highlight about her profile is that she cracked the UGC NET JRF in her first attempt. Uh, or this was all while she was doing her master's. What I have personally seen with Priyanka Sharma ma'am is that she's very active in the field of UGC NET. You could ask her anytime and she'll know everything that is happening with the new changes in 2024. For example, the mode of examination, a new syllabus is awaited. Everything is on her tips, and she has always been ready with active in the in this field. She has more than 14 years of experience in teaching in higher educations and universities. Currently, she is a leading faculty with Physics Wala, one of the largest tech organization in India. Other than that, she has also presented more than 21 research papers in international journals. Uh, and she is also, she's also one of the coach at IRIW, Institute for Research and Indian Wisdom, for CSAT for the UPSC candidates. Her special interests lie in research, and she's one of the best, educators for particularly research and UGC NET education and paper 1. Let me, before we go ahead, let me give you a hint of what Priyanka Sharma, has done with us as Chan. She has authored two books. One is for UGC NET paper 1 and another is for UGC NET paper 2. Now, these books are, they follow the latest trend of the examinations. She has made it very comprehensive. If you can see, the covers of the books, they all have different features, which are, she has given us mock tests. She has included NEP, which is very, very important. Now, she has given us detailed concepts in research aptitude, latest solved papers, PYQs and fact checks, which are very important, by the way. She has also given us step-by-step solutions because, when you're attempting paper 1, most of us do not have that kind of a mathematical or, reasoning kind of a background. So, of course, we need those kind of step-by-step solutions. Both the books are visually appealing as they are covered, all the concepts are covered with flowcharts and easy to learn and understand language.
Now, also we have some of the content on Test Coach, which is, a proprietary software that SCHAN uses. As you can see, we have for paper one, we have 3,500 plus practice questions, and some of them, 800 plus are on Test Coach. You can just scan the code on the front cover and access those extra questions. This is, the kind of thing you can expect when you look at our website. Test Coach. These are PYQs, additional concepts, logical reasoning, mock tests, NEP 2020, etc. Coming back to NEP 2020, we have NEP integrated, books which have NEP 2020 snapshot of NEP 2020. We have NCF also and a mock test on NEP 2020. Other than that, you can have a look at the reviews of both the books. This is most of them are 5-star reviews. This is for paper one. Another is for paper two, where people are saying, it is easy to crack JRF, nice book, and precise and apt book for NET aspirants. I mean, if this is not something that, might, if this is not something that might entice you to check out our books, let me call Priyanka Sharma ma'am and let us hear from her. And before I call ma'am on the mic, please let me tell you that, please let me tell you that this session, all the participants will be on mute. Whenever you would like to ask a question, we are always there in the chat box. Please share your questions. We are all open to answering the questions. Just please be respectful, and let us now invite Priyanka Sharma ma'am. Priyanka Sharma ma'am, are you there? Yes, thank you, Tamanna. You have been too kind to me. We both have worked on the books, I think day and night, and lots of discussions. So, acha. Another thing is I'll be keeping the mode bilingual because we have students who understand dono. Many students are comfortable in English. There are others जो हिंदी में comfortable है. तो हम सभी को cater करेंगे. तो स्टूडेंट सबसे पहले कि हम वेबिनार की शुरुआत करें, मैं थोड़ा सा आपको तमन्ना के बारे में और थोड़ा एस चांद के बारे में बताना चाहती हूँ. एस चांद के बारे में when my parents got to know that I'm authoring books for them, मतलब हमारा जो एस चांद का UGC नेट वर्टिकल है, it got started with these 2 books. And when my parents got to know, एस चांद की हिस्ट्री इतनी पुरानी है कि मेरे फादर ने खुद एस चांद की बुक्स पढ़ी हुई हैं. यू ऑल नो ही इज अ सिविल सर्वेंट एंड उन्होंने एस चांद की बुक्स को एज रिसोर्सेज यूज किया है. माय मदर, she being a professor, most of my students already know my entire biography, so she has been relying on S Chand group. And my friends, who have cracked their NDA, मतलब किसी से भी आप पूछ लीजिए, उन्होंने एस चांद की बुक्स जो है वो ले ली है. So there was this extra happiness on their face, कि आप एस चांद के लिए लिख रहे हो, and we have somewhere or the other relied on this publication house. It was a choice mutually. They chose me, I chose them. And उसका रीजन ये कि हमारे वर्क एथिक्स बहुत मैच करते हैं. When I joined them to write the book, मेरे और तमन्ना के बीच में तमन्ना has been really a good part of both my books. She's really worked. और हम लोगों की इतनी डिस्कशंस होती थी. Why? Because we just wanted perfect work. Perfect work, मतलब छोटी छोटी चीजों के ऊपर ये नहीं वो नहीं. And the reason was कि जो work ethics की बात कर रहे हैं कि एस चांद is committed कि without ज्यादा बुक्स को कमर्शियल किए, कि आप जैसे फैंसी चीजें आजकल आप हो रही है, आप ज्यादा इंटेलिजेंट हो स्टूडेंट्स, यू कैन सी ऑन Amazon, यू कैन सी फ्लिपकार्ट, यू कैन सी इन्फ्लुएंसर्स टॉकिंग अबाउट ये वाली किताब ले लो, वो वाली किताब ले लो. एस चांद डजंट डू एनीथिंग. आप देखोगे ये लोग नहीं करते हैं, बिल्कुल भी नहीं करते हैं. बिकॉज दे बिलीव इन क्वालिटी. दे बिलीव कि अगर कोई चीज है, बच्चे को अच्छा लगेगा, अपने आप द नेम इज गोइंग टू स्प्रेड, व्हिच आई रियली लव्ड अबाउट देम. And those of you who know me, they also know my ethics. I'm not one of those commercial teachers who will say, हाँ जी आओ, my work is the best and you must take my work and तभी आप pass करोगे. I'm very open. I say, okay, fine. You enter my class, you listen from me, you see the books, you like it, take it. If you do not like it, don't take it. I am of that traditional, approach. तो तभी दोनों का जो है मिलन अच्छा हुआ है, एस चांद का एंड विद मी.
So history, of course, my family has been associated reading their books and reached a level. And the best part is that I have been associated with them, and we have started. We have just started with our UGC Net vertical. Both the books were presented at the International Book Fair, where they got just amazing response. और अभी हमारी just शुरुआत है. दूसरा जो मुझे इनका सबसे बेस्ट चीज लगी वो ये कि जैसे ही हम लोगों को पता चला कि चेंज आया है एग्जाम में, हम लोग बहुत प्लानिंग, हम लोग को जगह जगह से इनवाइट्स आए, टू बी वेरी ऑनेस्ट, वेदर इट इज चंडीगढ़, वेदर इट्स फ्रॉम डिफरेंट प्लेसेस, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, फॉर टॉक्स. एंड ड्यू टू सर्टेन रीजंस वो नहीं हो पाए क्योंकि तब इंडिया के अंदर कुछ चल रहा था. सो वी कुड नॉट गो, बिकॉज तमन्ना कुड नॉट ट्रैवल फ्रॉम दिल्ली, आई कुड नॉट ट्रैवल. तो हम लोगों ने ज्यादा वो भी नहीं किया कि चलो कमर्शियलाइज करते हैं या कुछ एंड ऑल ऑफ दैट. तो द थिंग इज वेरी क्लियर विद अस कि मोटिव ये नहीं है कि हम लोगों को कमर्शियलाइज करना है. जैसे ही पता चला कि पैटर्न चेंज हो रहा है और बच्चे पैनिक कर रहे हैं, बाकी जितने इनवाइट्स थे वो गए साइड पे, एंड दे टोल्ड मी मैम नथिंग डूइंग, हमको एक सेमिनार करना ही करना है. अब सबको फिजिकली नहीं पकड़ सकते, तो सेमिनार इनको just to tell them about the new pattern, tell them how do they crack both the papers, especially paper 1, and let's do it ASAP. Those of you who studied from me, they know I've already taken 2 lectures today, Saturdays, which are generally off, and शाम को webinar था. एम बहुत क्लियर है हमारा, वो ये कि जो भी बच्चों की मुश्किलें हैं उनको दूर करना है, उनको बेस्ट रिसोर्स देना है, अपनी तरफ से हमें बेस्ट करना है, विदाउट एनी बीइंग पॉम्पस अबाउट इट, और वेदर विदाउट बीइंग एनी टॉकिंग टू मच और क्रिएटिंग कॉन्ड्रम लाइक अदर्स. तो आई थिंक हम लोग सीधा भी वेबिनार की स्टार्ट करते हैं. आई विल शेयर माय स्क्रीन विद यू ऑल. तमन्ना, इज माय स्क्रीन विजिबल? Yes, it is visible. Yes. परफेक्ट, परफेक्ट. ओके, सो ये दोनों बुक्स है, पेपर 1 की भी और पेपर 2 की भी, विच यू, आई एम श्योर यू हैव लव्ड. एंड मैं ये भी बोलती हूँ कि आपके जो भी नोन्स है उनको आप जरूर सजेस्ट करो इफ यू लाइक देम, बोथ पेपर 1, पेपर 2. एंड लेट्स स्टार्ट. तो आज का जो सेमिनार है वो आप ये देख सकते हैं कि व्हाट इज द बेस्ट स्ट्रैटेजी टू क्रैक यूजीसी नेट इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट. सो यहाँ पे मेनली आई थिंक एजुकेशन के स्टूडेंट्स होंगे, आप डिफरेंट सब्जेक्ट्स के भी होंगे. तो जो नए स्टूडेंट्स हैं उनके लिए थोड़ा सा मैं ब्रीफ में बता देती हूँ दैट व्हाट इज यूजीसी नेट एग्जाम. सो बेसिकली यूजीसी नेट एग्जाम जो है वो इंडिया का एक नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो एनटीए 2 बार कंडक्ट कराता है पूरे के पूरे साल में, जिसके अंदर जो टॉप के 6% बच्चे होते हैं उनको नेट का सर्टिफिकेट मिलता है, जिससे कि वो पूरे के पूरे देश में कहीं पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए रेडी है, एलिजिबल है, राइट. और जो उनमें से टॉप के 1% होते हैं उनको जीआरएफ मिलता है, जिससे कि उनको पीएचडी करने के लिए स्कॉलरशिप मिलती है, अगेन कहीं पे भी इंडिया के किसी भी यूनिवर्सिटी में, किसी भी कॉलेज में वो जा सकते हैं. उसी प्रकार से सेट एग्जाम होता है, आई एम श्योर आप जानते हो. तो जैसे नेट नेशनल लेवल के ऊपर होता है, जो सेट एग्जाम है वो स्टेट लेवल के ऊपर होता है, स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट. अगर आप तेलंगाना सेट क्रैक कर रहे हो तो आप तेलंगाना में कहीं पे भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो, उसके बाहर नहीं. सेम गोज विद अगर आप महाराष्ट्र सेट क्रैक कर रहे हो या आप उत्तराखंड सेट, तो मतलब अपनी स्टेट में आप एलिजिबल हो. रिसर्च स्कॉलरशिप्स का स्टेट टू स्टेट डिफर करता है, आप जानते हो एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है. नेट एक सेट पैटर्न फॉलो करता है. सेट एग्जाम्स के अंदर स्कॉलरशिप्स देते हैं नहीं देते हैं वो डिपेंड करता है स्टेट के ऊपर, हम लोग एक रूल सबके लिए नहीं कह सकते, ठीक है. तो आई थिंक बेसिक हमको यूजीसी नेट का आइडिया पता चल चुका है. ये स्लाइड है जो एक्चुअली में बच्चों को ल्योर करती है. जनरली हम लोग क्या बोलते थे आज से कुछ साल पहले, दैट टीचिंग प्रोफेशन के अंदर पैसा नहीं है, सैलरीज आर नॉट देयर. And even now there are girls who are from such families जहाँ पे पेरेंट्स शादी करना चाहते हैं जल्दी, या जहाँ पे रिसोर्सेज नहीं है वहां पे बोला जाता है आप कोचिंग मत लो या जल्दी शादी करो और ये वो. एंड क्या ही कई बच्चे ऐसे भी है जो कहते हैं टीचिंग में पैसा नहीं है और समथिंग. तो आई जस्ट वांट टू पुट फॉर दिस स्लाइड इन फ्रंट ऑफ यू. एक प्रोफेसर की बेसिक सैलरी है, you can see 2,47,000, but you start with being an assistant professor, you put in 8 years, then you become associate professor, and then you become a professor. So 2,47,000 minimum आपकी as a professor salary होती है, जो कुछ साल के बाद होगी, right? Assistant professor में
आप मान के चलिए 1.25 लाख तो है, आपको मिलता ही मिलता है। और ये 7th पे कमीशन, जो कि आईएएस का, जो आईएएस होते हैं ना, आईएएस ऑफिसर्स, ये उनके ग्रेड की पे है। तो इफ यू बिकम एन असिस्टेंट प्रोफेसर, आपकी जो सैलरी होती है वो जो ग्रेड 1 ऑफिसर्स है देश के, ब्यूरोक्रेट्स, उनके लेवल की है। एक जो आईएएस इंडक्ट होता है और एक असिस्टेंट प्रोफेसर इंडक्ट होता है गवर्नमेंट जॉब में, दोनों का पे स्केल एक जैसा है। तो ये एक बहुत मोटिवेटिंग फैक्टर होता है, स्पेशली उन लोगों के लिए, जो रिश्तेदारों के लिए भी आपके, जो ये मान के चलते हैं दैट टीचिंग जॉब इज नॉट वेरी, it does not give you a lot of money or salary and stuff. तो आई एम श्योर बेसिक पता चल गया है, थोड़ी सी मोटिवेशन भी मिल गई होगी सैलरी स्ट्रक्चर देख के, क्योंकि बच्चों को वो भी नहीं पता होता। तो अब ना हम जो लेटेस्ट चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करेंगे, और फिर मैं आपको सेमिनार में ये बताने वाली हूँ, स्पेशली फोकस करेंगे पेपर 1 के ऊपर, कि पेपर 1 में कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है जो आपको करने हैं, और उसी से ही आपका जो क्रैक होने वाला है एग्जाम। टेक लिख के लेना है तो भी लिख के ले लो मुझसे, मैं आपको बता दूंगी कौन से टॉपिक्स हैं। तो सबसे पहले चेंजेस डिस्कस करते हैं। पहले होता था सीबीटी मोड पे, अभी होगा ओएमआर बेस्ड, यानी कि ऑफलाइन मोड में। 16th इज द डेट, 16th जून जब सबके एग्जाम होंगे, 16th ऑफ जून को। और 83 सब्जेक्ट्स के अंदर ये होता है, ऑफलाइन मोड में होगा। आपके हाथ में एक बुकलेट मिलेगी आपको। बुकलेट के लेफ्ट साइड में इंग्लिश क्वेश्चंस होते हैं, राइट साइड में आपको हिंदी में क्वेश्चंस मिलेंगे। हाउएवर आप लैंग्वेज सिलेक्ट करते हो पहले ही, राइट, कि आप इंग्लिश में करना चाहते हो या हिंदी में करना चाहते हो, बट मिलेंगे आपको दोनों। और यूजीसी का क्लियर कट ये कहना है कि ट्रांसलेशन में अगर कुछ गड़बड़ होती है तो जो इंग्लिश वर्जन है उसको ही सही माना जाएगा। एंड दैट इज द रीजन व्हाई आई ऑलवेज टेल यू इन माय क्लासरूम्स, व्हेन यू से मैम हिंदी में बोलो, इंग्लिश में हम कंफर्टेबल नहीं है, सो आई ऑलवेज टेल यू कि यहाँ पे तो हम हिंदी बोल लेंगे, अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी में जॉब मिल गई या साउथ में मिल गई तो वहां पे क्या करोगे। सो सी, अभी यूजीसी ने क्लियरली बोल दिया है कि भाई कहीं गड़बड़ हुई तो हम इंग्लिश ट्रांसलेशन ही सही मानेंगे। तो ये इन्होंने एक चीज बोली है। दूसरा, ये कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। सिलेबस हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार ही चेंज होगा, रत्ती भर भी चेंज नहीं हुआ है। नॉट इवन एन आयोटा ऑफ टॉपिक्स हैव चेंज्ड, थैंकफुली। बिल्कुल भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। सिलेबस सेम है, कॉन्सेप्ट सेम है, क्वेश्चन सेम है। ये एक्चुअली में हम लोगों के लिए एक शॉक था। If anyone tells you, I often tell this in my classroom also, if any educator in India teaching UGC net tells you कि हाँ हमें पता था OMR में होगा, ऑफलाइन में होगा, they're lying. It is a complete surprise to each one of us, and which I believe is a very good change. जब मैंने भी अपने क्रैक किए JRF दोनों सब्जेक्ट्स के अंदर, तो मैंने OMR बेस में ही दिया। एंड आई ऑलवेज से कि ये चीज बेटर होती है, क्योंकि जब आप डिजिटली पेपर देते हो सीबीटी मोड में, कई बच्चे हैं जिनको फ्लिकरिंग का इश्यू होता है, आपको नहीं मतलब कईयों को माइग्रेन होता है ज्यादा स्क्रोलिंग से, ऊपर नीचे करने में टाइम वेस्ट होता है, राइट। तो क्वेश्चंस में देखने में ऊपर नीचे आपको बहुत समय वेस्ट हो जाता है। जब आपके पास ऑफलाइन बुकलेट होती है, आप एक ही ग्लांस में 30 क्वेश्चंस देख पाते हो। आप टिक कर पाओगे कि मुझे किसका मार्क अभी करना है आंसर, किसका बाद में। मैं तो ऐसे करती थी, मेरे पास बुकलेट होती थी, मैं आई वुड जस्ट गो थ्रू, अच्छा ये टॉपिक मैंने नहीं किया, आई पुट अ क्रॉस, इसका आंसर मुझे करना ही नहीं, बाद में करूंगी मैं। नेगेटिव मार्किंग है, आंसर जरूर डालना है, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस जो नहीं आते उन पे छोटा सा क्रॉस कर दो कि इसको हम बाद में अटेम्प्ट करेंगे। क्योंकि ओएमआर शीट में जो सबसे बड़ा एक नेगेटिव पॉइंट तो नहीं कहना चाहिए, बट एक वीकनेस होती है कि एक बारी पेन चला गया ना जीरो सर्कल पे तो वो गया। तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है। ग्रुप में मैंने आपके साथ ओएमआर शीट का एग्जांपल भी दिया था। कई प्रैक्टिस करना चाहते हो तो अमेजोन फ्लिपकार्ट पे अमेजोन शीट्स भी मिलती है ओएमआर, आप कर सकते हो, उसकी प्रैक्टिस भी मैं आपको करवा दूंगी वैसे। तो ओएमआर में सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपने शीट पे पेन रखने से पहले आप ऑफलाइन में जो आपको बुकलेट मिली है उस पे मार्क कर लो कि ऑप्शन सी है तो टिक, और उसके बाद ही ओएमआर शीट पे ब्लू ब्लैक आपकी जो इंक होगी उसको भरना, राइट। तो इसके अंदर ना गलती होने के चांस भी कम होते हैं अगर आप केयरफुल हो। और अगर आप केयरलेसली ऐसे कर रहे हो कि अरे क्वेश्चन हाँ ये सी ही होगा, 3 ही होगा, ऐसे ऐसे करके अगर आप करोगे तो फिर गड़बड़ हो गई तो फिर ठीक नहीं कर पाओगे। तो अगर आप अटेंटिव हो कर पाओगे। आई विल टेल यू, मेरे से बहुत बड़ी मिस्टेक होने वाली थी जब मैं एजुकेशन का जीआरएफ क्रैक कर रही थी। रोल नंबर भरते टाइम गड़बड़ हो रही थी, और अगर वो
थैंकफुली मेरे एग्जामिनर थे, शी वाज वेरी मच क्लोज टू मी एंड शी सेड बेटा ये 3 यहाँ पे नहीं, इस साइड लिखना है, लेफ्ट में नहीं राइट में। और अगर वो मैं गलती से रोल नंबर गलत मार्क कर लेती उसके अंदर, तो आई वुड हैव बीन डिस्क्वालिफाइड। जितना मर्जी आप, तो यहाँ पे ये चीजें बहुत ध्यान रखनी है कि जब ओएमआर शीट आपके पास आई तो पेन गया नहीं कि आपका वो कॉलम गया। ठीक है, तो इसके ऊपर मैं और भी डिस्कशंस करूंगी, किसी का कोई क्वेश्चन हो वो चैट बॉक्स में डाल सकते हैं, बट इसके पॉजिटिव्स ही हैं। एज आई ऑलवेज से, लिखो लिखो लिखो। यहाँ पे साइकोमोटर स्किल्स इन्वॉल्व होंगे, जब आप मार्क करोगे अच्छे से गोले को सर्कल करोगे। कोनेटिव स्किल, आपके अफेक्टिव डोमेन, कॉग्निटिव डोमेन, ये तीनों के तीनों मैच करते हैं ओएमआर शीट में स्पेसिफिकली, राइट। तो 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 के। एक बारी हम लोग रिवाइज कर लेते हैं सारा का सारा पैटर्न। 3 घंटे का होता है, कोई ब्रेक नहीं होगी। मेरे टाइम में ब्रेक होती थी, अब नहीं होती है ब्रेक। 3 घंटे का पूरा प्रोसेस होता है, जो सीबीटी मोड में भी था। ठीक है, कोई ब्रेक नहीं है। 50 क्वेश्चन पेपर 1 के होंगे और 100 क्वेश्चन होते हैं पेपर 2 के। ये आप देख सकते हो एग्जाम पैटर्न। 50 + 100 क्वेश्चन, टोटल कितने हो गए अपने पास? 150। ये मार्क्स है, ये क्वेश्चंस हैं, टोटल क्वेश्चंस हो गए अपने पास 150 और मार्क्स हो गए 300, और सबके सब एमसीक्यूज होते हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है। नाउ वी कम टू दिस स्लाइड। अब ये प्रॉब्लम कर देती है, ये जो आप स्लाइड देख रहे हो, यहाँ पे जनरल जो होते हैं उनका बताया हुआ है कि पेपर 1 में कितने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, बेसिकली दिस इज एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सो यूजीसी नेट की ना जो शुरुआत होती है, जो फर्स्ट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, वो होता है कि अगर आपके 55% मार्क्स है, यू गॉट 55% इन योर मास्टर्स एज जनरल कैटेगरी, यू कैन अप्लाई। दूसरी कैटेगरीज में 50% होते हैं तो यू कैन अप्लाई। ये होता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नंबर 1, कि मतलब दे बिलीव कि हाँ भाई आपको नॉलेज है। पॉइंट नंबर 2 होता है, दे से ओके फाइन, एलिजिबल हो, पैसे पूसे भर दिए, आओ पेपर दो। अब पेपर 1 कंपल्सरी है, 83 सब्जेक्ट्स माय डियर स्टूडेंट्स, वेयर यू हैव संस्कृत, where you have Bengali, where you have Arabic, you have economics, you have commerce, management, education, psychology, sociology, political science and so on. और पेपर 1 है कॉमन, 10 यूनिट्स। तो कहने में ही थोड़ा सा अनजस्टिफाइड लगता है कि एक लिटरेचर के बच्चे को हम कैसे कंपेयर कर सकते हैं कॉमर्स या मैथ वाले के साथ। बट इन्होंने पेपर 1 को कॉमन किया है, इट मींस देयर मस्ट बी समथिंग। वो समथिंग क्या है वो हम डिस्कस करेंगे, और वो समथिंग आप कैसे पूरा कर पाओगे। एक लिटरेचर, हिंदी लिटरेचर का बच्चा भी वो पेपर 1 में कैसे स्कोर कर पाएगा, जो इकोनॉमिक्स का बच्चा स्कोर कर पाएगा, वो है स्ट्रैटेजी। वो स्ट्रैटेजी हम सबके लिए जानना बहुत जरूरी है, राइट। और पेपर 2 होता है जैसे आपका स्पेसिफिक मास्टर्स है। अगर मैंने इंग्लिश में मास्टर्स किए तो पेपर 2 इंग्लिश में होगा, जो आप सभी जानते हैं। अगर इकोनॉमिक्स में किया है तो 100 क्वेश्चंस इसके होंगे। अब जो नंबर 2 एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, मतलब आप एग्जाम देने बैठ गए हो और एग्जाम देने के बाद आपके पेपर 1 में नंबर देखे जाएंगे और पेपर 2 में नंबर देखे जाएंगे। अगर इंडिविजुअली 40% आ रहे हैं या एग्रीगेट दोनों मिला के 40% नंबर आते हैं, तब जाके आप एलिजिबल होगे सिलेक्शन के लिए। इट डज नॉट मीन 40% हियर 40% हियर डज नॉट मीन कि आप सिलेक्शन में आ जाओगे। इट मीन्स कि आप सिलेक्शन वाले लिस्ट के अंदर आपका नाम आएगा। एंड यहाँ पे ही मैक्सिमम स्टूडेंट्स का डामाडोल होता है। ट्रस्ट यू मी, हमें कितने चाहिए? 20 क्वेश्चन सही चाहिए आउट ऑफ 50। नहीं हो पाते। मैं एग्जाम्पल्स दे सकती हूँ, मेरे पास स्कोर कार्ड्स है स्टूडेंट्स का, जिनके एजुकेशन के अंदर, इकोनॉमिक्स के अंदर, एजुकेशन में 72+ क्वेश्चन सही है, इकोनॉमिक्स में 69 क्वेश्चन सही हैं, हिंदी लिटरेचर में इतने क्वेश्चन सही है 70+ है, और पेपर 1 की वजह से रह जाते हैं। 16 है किसी के 18 है रह गए, किसी के 14 है और है 70+ पेपर 2 में। तो डू आई मीन टू से कि पेपर 2 पे कम फोकस करो? बिल्कुल नहीं। पेपर 2 पे हम जो कर रहे हैं, हमारा मास्टर्स का सब्जेक्ट है, हमारा मन लगता है, हमारा एप्टीट्यूड है, तभी तो हम कर रहे हैं ना। तो पेपर 2 की तैयारी हमको वैसे ही करते रहनी है जैसे कि आप कर रहे हो। डबल क्वेश्चंस आते हैं। बट ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि वो बच्चे, मान के चलो, जो लीड कर रहे हैं, एक ऐसी लड़की है, नाम नहीं ले सकती हूँ, स्टूडेंट्स की अपनी प्राइवेसी होती है, उसके हाईएस्ट स्कोर आए पेपर 2 में
एक पेपर 2 में, और उसके 14 क्वेश्चन सही हुए हैं पेपर 1 में। शी क्राइड सो मच कि अगर मैंने पेपर 1 में थोड़ा सा ध्यान दिया होता, या मैंने उससे पूछा कि व्हाट वेंट रॉन्ग, आप 14 नंबर क्यों, तो शी वाज लाइक मैंने इसको ना ग्रांटेड लिया कि ये तो हो जाता है, कॉमन है बेसिक सी चीज है, ये तो हो जाता है, अगर मैं इतना अच्छा पेपर 2 में कर रही हूँ, डबल क्वेश्चंस आ रहे हैं, पेपर 1 में भी हो जाएगा। और ये एटीट्यूड ही उसको जो भारी पड़ गया, राइट। तो हमको ये इंश्योर करना है कि ये वाला जो 40% है ना, ये तो अच्छे से करना ही करना है, ये आना चाहिए। ये जो बाकी कैटेगरीज के लिए है, ये वाला आना चाहिए। और ये कैसे इजीली आएगा, ये मैं आपको आज हेल्प करूंगी बताने के लिए। और वो स्ट्रैटेजी अगर आप फॉलो करते हो, एज आई टेल यू, आई कैन गिव इट यू इन राइटिंग, कि आपका हो जाएगा पेपर 1 आराम से। पेपर 2 तो होगा ही होगा, आई एम देयर। पेपर 1 आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये जर्नल में से लिया है, 16 जून को आप सबका पेपर है। तो इसके अंदर चेंजेस ये होंगे कि पहले क्या होता था, 83 सब्जेक्ट्स अलग अलग डेट्स के ऊपर पेपर हो रहा है, डबल डबल शिफ्ट्स के अंदर हो रहा है कई सब्जेक्ट्स में। तो बहुत ज्यादा पेपर 1 के अंदर वेरिएशन आ रही थी, आई एम श्योर सभी जानते होंगे। बहुत वेरिएशन आ रही थी, डिफरेंट डिफरेंट तरह के पेपर 1। बच्चों ने कितना ज्यादा इसके रेजिस्टेंस में भी आवाज खड़ी की, अरे फलाने वाले हमारे शिफ्ट 2 के पेपर में पेपर 1 इजी आया था, दूसरे सब्जेक्ट वाले कह रहे हैं हमारा पेपर 1 इजी था, कोई कह रहा है हमारा पेपर 1 डिफिकल्ट था। सो एक ये पॉइंट है कि जब आप ऑफलाइन मोड में एक दिन में पेपर देते हो, नो मैटर वो डिफरेंट शिफ्ट्स में हो रहा है या डिफरेंट पेपर 2 सब्जेक्ट्स का है, तो पेपर 1 की वेरिएशन कम हो जाती है। कई कई ऐसे सब्जेक्ट्स होंगे जहां पे पेपर 1 कॉमन आएगा, नॉर्मलाइजेशन में चीजें इजी हो जाती है। तो ये एक अच्छी चीज आने वाली है कि पेपर 1 में क्वालिटी क्वेश्चंस आएंगे आने वाले एग्जाम में, और वेरिएशन कम होगी। मतलब आपस में सब्जेक्ट्स अब ये नहीं कह सकते कि हिंदी वाले का डिफिकल्ट आया या अरबिक वाले का इजी आया एंड सो ऑन, क्योंकि सबका लेवल पेपर 1 का एक जैसा ही होता है। ठीक है, अब ये एक चेंज जो है एनटीए ने पहले डिक्लेयर किया, जो आप अपनी मेरी स्क्रीन पे देख सकते हो, वो ये कि 3 कैटेगरीज पे इन्होंने कहा है कि नेट आप कर पाएंगे, राइट। 3 कैटेगरीज। नंबर 1 वाली जो कैटेगरी है, वो बच्चे हैं जो जेआरएफ चाहते हैं, जो पीएचडी करना चाहते हैं, फेलोशिप लेना चाहते हैं, आप क्रैक कर सकते हो। एंड जाहिर सी बात है, अगर आप जेआरएफ क्रैक कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, तो आप नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे, राइट। तो पहली कैटेगरी में तो है ही नहीं, जो हम ऑलरेडी करते थे वही हम करने वाले। दूसरी कैटेगरी के अंदर, अच्छा, अब जेआरएफ के लिए एक चीज जरूरी है, वो ये कि आपकी जो उम्र है वो 30 ईयर से ऊपर नहीं होनी चाहिए 1 जून 2024 तक, लड़कियों के लिए। और दूसरी कैटेगरीज के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन, 35 ईयर्स। अगेन, अगर आपका 35 ईयर्स प्लस होता है 1 जून 2024 से, तो आप नहीं एलिजिबल होंगे इसके लिए। एग्जाम से पहले तक आपको एटलीस्ट 35 से छोटी एज आपकी होनी चाहिए, और बाकियों के लिए 30 ईयर्स। अब ये जो सेकेंड कैटेगरी है, ये क्या है, ये उन बच्चों के लिए है जो जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, जनरल कैटेगरी के लड़के, दूसरी कैटेगरीज के बच्चे जो 35 ईयर्स प्लस हो चुके हैं, इवन दो वो जेआरएफ चाहेंगे भी नहीं, बिकॉज उनका एज ऊपर हो चुका है, तो आपको सिर्फ नेट मिलेगा। नो मैटर आप सबसे ऊपर आ जाओ, 99 परसेंटाइल लेके आ जाओ, जेआरएफ का बेशक कम हो जाए परसेंटाइल लेके, लेकिन आपको नेट ही मिलेगा बिकॉज ऑफ द एज एंड अदर थिंग्स, आपको जेआरएफ के लिए एलिजिबल नहीं। अब ये जो तीसरी कैटेगरी है, ये क्या है, ये उन लोगों के लिए है जो सिर्फ और सिर्फ पीएचडी करना चाहते हैं। आप जानते हो, बहुत अब इंडिया के अंदर डिसेंट्रलाइजेशन है एजुकेशन के अंदर, स्टेट्स अपनी चलाती हैं, स्टेट यूनिवर्सिटीज के अंदर अपना चीजें चल रही है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के अंदर अपनी चल रही है। कई लोग अपना रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट पूरे साल में कराते हैं, कई ऐसी यूनिवर्सिटीज हैं जो 6-6, 7-7 साल पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट जो है वो नहीं कराती है, राइट। तो बच्चों के मन में खटास आती है, which is I am also an educator, I have been in your place, right, so I particularly know। हमें नहीं पता होता हमारी यूनिवर्सिटी रेट करवाने वाली है या नहीं करवाने वाली है। रेट जानते हैं, रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट होता है पीएचडी के लिए, नहीं पता होता। वी आर ऑलवेज, जिसको कहते हैं ना, मायूस, बिकॉज इफ somebody is not getting net, somebody is not getting JRF, you're waiting for the university to conduct RET। तो there is always, जिसको कहते हैं uneven approach, हम लोगों की भी होती है, भाई हम तैयारी करें और यूनिवर्सिटी ना कंडक्ट करवाए पेपर, तो हो गई ना गड़बड़। और कभी कभी एकदम से यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा देती है और हम प्रिपेयर्ड नहीं होते।
तो इस चीज को थोड़ा सा स्टेबल करने के लिए जो यूजीसी नेट है, एनटीए, उन्होंने कहा कि एक थर्ड कैटेगरी लाते हैं। इसमें अगर बच्चा थर्ड कैटेगरी में पीएचडी के नंबर ले आता है तो मतलब वो किसी भी यूनिवर्सिटी में पीएचडी इंटरव्यू या रिसर्च प्रपोजल प्रेजेंट कर पाएगा। ओके, नंबर 1। अब जिसने थर्ड कैटेगरी चूज की है वो टीच नहीं कर सकता। ऐसे में क्या होता है, मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर की स्टेज में नहीं आ सकता। हो सकता है कोई स्कूल प्रिंसिपल हो, उसने यूनिवर्सिटी में नहीं पढ़ाना, स्कूल में, वो पीएचडी कर सकता है। कई मैं रिसोर्स पर्सन हूँ डिफरेंट यूनिवर्सिटीज की, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज की, जहाँ पे मैं रिसर्च मेथोडोलॉजी करवाती हूँ पीएचडी कैंडिडेट्स को। ऐसे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो सीईओज हैं, कंपनी के सीईओज हैं, वाइस प्रेसिडेंट्स है, एग्जीक्यूटिव वीपीज है, जो सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए या अपने पर्टिकुलर एरिया में जेन्युइनली रिसर्च करना चाहते हैं और समय नहीं है उनके पास, तो वो थ्रू कॉरेस्पॉन्डेंस या ओपन मोड पीएचडी करते हैं। अब से क्या होगा, अच्छी यूनिवर्सिटीज में अगर वो ये वाला एग्जाम क्रैक करते हैं तो वहां पे वो लोग पीएचडी में एडमिशन ले पाएंगे। ये जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था वो अब तक का था कि अभी जो लोग हैं वो किस तरह, क्योंकि जो ओपन स्टूडेंट्स वाला जो कॉन्सेप्ट है, ओपन स्टूडेंट्स पीएचडी वाला, ये बहुत कम यूनिवर्सिटीज में है। अभी इसके माध्यम से काफी ज्यादा यूनिवर्सिटीज इसके लिए ओपन हो जाएंगी और डेफिनेटली स्टैंडर्डाइज एजुकेशन मिलेगी। सो द ओनली थिंग इज इन थर्ड कैटेगरी यू आर नॉट एलिजिबल फॉर टीचिंग, और नेट वाला जो कैटेगरी है वो नहीं होगा, आप पीएचडी एडमिशन के लिए एलिजिबल होंगे। एक और स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कैटेगरी नंबर 2 में। कैटेगरी नंबर 2 मतलब जिनके पास नेट है, राइट? अगर किसी यूनिवर्सिटी में आप पीएचडी एडमिशन के लिए जाते हैं और वहां पे होता है कंपटीशन, आपके जैसे पता नहीं 100 लोग और बैठे होंगे, राइट? तो यहाँ पे जो आपके नंबर आएंगे ना नेट में, दिस कैन एड वेटेज टू योर सिलेक्शन। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अगर एक सीट के पीछे 5 है और पांचों ने नेट क्रैक किया है, तो आपका जो परसेंटाइल स्कोर है अगर वो हाई है तो आपके सिलेक्शन के हाई चांसेस है। तो ये डाउट जो है ये क्लियर हो जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे स्टूडेंट्स काफी ज्यादा डाउट में रहते हैं कि ये क्या है। इट इज सिंपल दैट यू हैव क्रैक्ड योर नेट, यू हैव नॉट बीन एबल टू क्रैक जेआरएफ ड्यू टू सर्टेन रीजंस XYZ, but if you want to do PhD in a particular university, you will go, you can show your scorecard and you are eligible. आप अपने उसके मेरिट के बेसिस के ऊपर आपको सिलेक्शन के काफी ज्यादा चांसेस जो है वो मिलते हैं। आपको इंग्लिश वाली चीज बता दी, ये सारा का सारा जो बुलेटिन निकाला है इन्होंने उसके लिए है। बच्चों को रिजर्वेशंस के बारे में नहीं पता होता, तो आपको पता होना चाहिए कि 15% जो सीट्स होती हैं सिलेक्शन की वो एससी कैंडिडेट्स की होती है, 7.5% सीट्स जो होती है वो एसटी कैंडिडेट्स की है, 27% सीट्स जो होती है वो अदर या नॉन क्रीमी जो क्लासेस होते हैं उनके बच्चों के लिए है, 10% जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन से जो बच्चे आते हैं उनके लिए रिजर्व होती है, और बाकी 5% सीट्स जो होती है वो बच्चे जो डिसेबल्ड है ना, स्पेशली 40% प्लस डिसेबिलिटी अगर उनको है तो उनके लिए वो सीट्स रिजर्व होती है। देखिए, होता यह है कि हमारे लाइफ के अंदर सबसे बड़ा हैंडीकैप होता है हमारा इग्नोरेंस। हम करना चाहते हैं क्रैक बड़े बड़े एग्जाम, लेकिन उसके बेसिक नुआंसेस हमें नहीं पता होते। तो ये चीजें, ये जो लॉजिस्टिक्स आपको स्क्रीन पे दिख रही हैं, ये आपको पता होना चाहिए, बिकॉज टुमारो यू आर गोइंग टू गो टू द क्लासेस एंड टीच स्टूडेंट्स, and those students are very smart, they can check this on Google एक click में, and your respect is in your hands. So that is why I say that knowledge जो होती है वो एक पावर की तरह होती है। आपको पता होना चाहिए कि रिजर्वेशंस किस बेसिस पे होती है, क्या उनका नंबर होता है, और आप इसको वेरीफाई कर पाएंगे जब रिजल्ट आएगा ना, तो उसके अंदर जब आते कि जनरल कैटेगरी में इतनी सीट थी, एससी में इतनी थी, एसटी में इतनी थी, तो आप ये फॉर्मूला लगा के चेक करेंगे और आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे किस कैटेगरी में कितनी नंबर ऑफ सीट्स बनती हैं, और जनरल से आप उसे कंपेयर कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला होता है विच यू शुड नो। नाउ आई कम टू दिस पेपर जिसमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स घबराते हैं, डरते हैं। नाउ वी कम टू द टेक्निकलिटीज। किसी को कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तमन्ना, इफ यू लिसनिंग टू मी, अगर कोई ऐसा डाउट है जो अभी तक हमने बात की है, वी कैन टेक अप दैट। Yes, I'm having a look at the chat box. Is there any particular doubt? आप बता सकते हो, because for me scrolling would be tough. I think जो अभी तक पढ़ाया उसके लिए तो किसी को कोई डाउट नहीं है। Some people are asking if they can attempt the JRF
for the fourth time. हाँ, या एब्सोल्युटली, देयर आर नो नंबर, जितना मर्जी बारी अपियर करिए, आपके पास अगर एज फैक्टर है, आप 30 ईयर्स से कम है, आप 7 बारी करो, 8 बारी करो, द ओनली थिंग इज एज लिमिट का ध्यान रखिए। नो Right. हाँ, कोई जितना मर्जी बारीक करिए, आप 55 साल के तब भी नेट करना चाहते हैं, आप कर सकते हैं, जीआरएफ नहीं कर पाए। Right. And there's one question where a person is asking if they can select three, all the three options if they are freshers. हाँ, काफी स्टूडेंट्स है जिनके सिस्टम के अंदर ये हुआ है कि वो एक को टिक करते हैं और वो ऑटोमेटिकली तीनों को पिक कर रहा है। देखो, इट्स वेरी सिंपल। अगर आप नंबर 1 कैटेगरी को चूज करते हैं, राइट, अब आपको नेट भी मिल रहा है, आपको जेआरएफ भी मिल रहा है, अगर आपकी एज है, ठीक है। आप उसके लिए एलिजिबल नहीं हो, आप नंबर 2 को करते हो, तो आप अगर 35 प्लस हो तो आप 1 को नहीं कर सकते ना सिलेक्ट। अगर आप फ्रेशर हो और आपने आपकी एज भी 35 से कम है, 30 से कम है, अगर आप फर्स्ट को कर रहे हो तो आप तो एक तरह से तीनों में एलिजिबल हो गए। Are you getting my point? If you are a fresher, if you have the age in your hand, आप पहली कैटेगरी को टिक कर रहे हो तो you are good for both. जीआरएफ तो आपको हमेशा के लिए मिल गया सर्टिफिकेट, आप उसको अवेल करते हैं नहीं करते हैं, पीएचडी करते हैं नहीं करते हैं, सरकार की फेलोशिप लेते हैं नहीं लेते, वो आपका चॉइस है। तो अगर आपके पास एज है तो आप नंबर 1 कैटेगरी चूज करिए, आपको जीआरएफ का सर्टिफिकेट मिलेगा, यू आर एलिजिबल टू डू पीएचडी, एंड ऑफ कोर्स यू आर एलिजिबल टू बी असिस्टेंट प्रोफेसर्स आल्सो। तीनों को टिक करना इट डजंट मेक सेंस। कईयों के सिस्टम में है कि वो एक को टिक कर रहे हैं तो तीनों टिक हो रहे हैं, तो उस केस में तो आप क्या ही कर सकते हैं। बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि अगर, क्योंकि आप में से मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यू वांट टू डू टीचिंग, so choose 1 if your age is in the limit, and choose category number 2 if you are cross the age. Okay, अब थोड़ी सी टेक्निकल बातें करते हैं। तमन्ना, अभी डन विद द क्वेश्चंस ना अभी तक? This question, one person is asking whether all the exams will be held on 16th June. Yes, अभी तक तो एनटीए ने यही बोला है कि 16th को सभी के होंगे। तभी मैंने आपको बोला था कि जो वेरिएशन है इस बारी पेपर 1 में कम होगी, एंड दैट इज द रीजन कि जब काफी सारा एग्जाम्स एक ही दिन होते हैं तो पेपर 1 बहुत कॉमन आता है, कई सब्जेक्ट्स के अंदर वेरिएशन कम होती है। तो 16 तारीख अभी तक जो एनटीए ने यही बोला है कि 16 को सभी होंगे। अभी एडमिट कार्ड्स वगैरह का डेट अभी वो बताएंगे, करेक्शन विंडो 15 तक खुली रहेगी। आप अभी 2-3 दिन ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, वेबसाइट जो है वो चल भी नहीं रही है, तो 3-4-5 दिन जो है पेशेंस रखिए, ठीक हो जाएगा, यू विल बी एबल टू फिल द फॉर्म। आर वी गुड टू गो? Yes. ओके, तो अभी हम थोड़ा सा टेक्निकल साइड के ऊपर आते हैं, जहां पे मैं बहुत बेबाक होकर चीजें बोलने वाली हूँ। सम फैकल्टीज में लाइक इट, फैकल्टीज की बात बोल रही हूँ मैं, बच्चों की नहीं। सम फैकल्टीज में नॉट लाइक इट। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज पेपर 1 इज समथिंग व्हिच सो मेनी पीपल आर टीचिंग। ऑनेस्टली स्पीकिंग, दिस इज सच एन आयरनी कि मतलब यूट्यूब में ये है कि हर इंसान सब कुछ करना चाहता है। अपने नाम के आगे लोगों ने जेआरएफ लगा हुआ है, एंड वो पढ़ा रहे यूजीसी नेट। आपको नहीं पता, उनका खुद का नेट नहीं क्रैक हुआ, अब आप जाके चेक थोड़ी ना करेंगे कि बताइए जेआरएफ दिखाइए सर्टिफिकेट, नाम के आगे नेट लगाया हुआ है, जेआरएफ लगाया। आई ऑल्सो नो सर्टेन एजुकेटर्स जिन्होंने नाम के आगे डॉक्टर लगाया हुआ है। कहाँ से किया, क्या नहीं किया, वो हमें नहीं पता, और हम भी उनको मान के चलते हैं। आई एम टेलिंग यू, एजुकेशन में तो मैं एक्चुअली मैं पर्सनली भी जानती हूँ किसी को, somebody who's doing very good but she's not even net, but अपने आप को वो जेआरएफ लिखते हैं काफी टाइम से। तो क्या होता है कि इस टाइम पे आप लोगों की समझ बहुत ज्यादा मैटर करती है। तो मैं सबसे पहले यही बोलती हूँ कि जब आप किसी से भी पढ़ते हैं तो इंश्योर करिए कि उनकी एकेडमिक बैकग्राउंड आपको बहुत अच्छे से पता हो। उनसे पढ़िए जिनके पास एक्सपीरियंस है, उनसे पढ़िए जिनकी एकेडमिक बैकग्राउंड को आप वेरीफाई कर सके। आप रिसर्चर हो, मैं यही बोलती हूँ कि प्रियंका मैम बात करे या कोई भी बात करे, एंश्योर दैट यू आर वेरीफाइंग व्हाटएवर द अदर पर्सन इज सेइंग,
और एक बारी वेरीफाई कर लिया, एक बारी आपने उनका एक्सपीरियंस देख लिया, फिर आप उनको आंख बंद करके आप उनके पीछे लग जाइए और आप इंश्योर करो कि आपकी सिलेक्शन डेफिनेटली होगी अगर आप उनको फॉलो कर रहे हैं। मैंने एक बात की थी अभी शुरुआत में कि काफी फैकल्टीज, इफ दे would listen to this webinar or they would get to know from students like you, they may like it कि मैं कई चीजें बोल रही हूँ और कईयों को चीजें पसंद नहीं आएगी। एक तो मैंने क्वालिफिकेशन का बोल दिया आपको। दूसरा मैं ये कहती हूँ कि certain faculties teach certain units, they are specializing in certain units। हो सकता है उन यूनिट्स को मैं बोलूं बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं सच बोलूंगी, आई विल बी वेरी ब्लंट विद यू ऑल। एंड कई यूनिट्स ऐसे फैकल्टीज पढ़ाते हैं जिस यूनिट को मैं अच्छा नहीं बोलूंगी, तो ऑब्वियसली दे आर नॉट गोइंग टू लाइक इट कि हम जिन यूनिट्स को पढ़ाते हैं उसको प्रियंका मैम ने कहा कि नहीं इसको रहने दो या समथिंग लाइक दैट। सो इस सेमिनार में, as S Chand also promises, and I also promise that I will be telling you the strategy which is the most correctly followed strategy across all the 83 disciplines। 10 यूनिट्स होती हैं आपकी पेपर 1 में। टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, कॉम्प्रीहेंशन, कम्युनिकेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, लॉजिकल रीजनिंग, डेटा इंटरप्रिटेशन, आईसीटी, पीपल डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम। ठीक है एवरीवन? नाउ एक बारी आपको ये ग्राफ दिख रहा होगा, आपको टेबल दिख रहा होगा, ये 2018 से लेके 2022 तक का रिकॉर्ड है सभी 83 सब्जेक्ट्स का एवरेज। ऑल 83 सब्जेक्ट्स में जो पेपर 1 होता है ये उसका एवरेज है कि यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 में से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं। 2023 का मैं आपको खुद लिख के बताऊंगी। सो दिस इज द एवरेज ऑफ ऑल द 83 सब्जेक्ट्स, यानी कि वो बेशक बंगाली का पेपर हो, वो बेशक अरबिक का हो, कॉमर्स का हो, मैनेजमेंट का हो, एजुकेशन का हो। 2018 में 8 से 10 क्वेश्चन आते थे टीचिंग एप्टीट्यूड के, और 2022 में जो है 4 से 6 तक आते रहे हैं 2021 में। तो अब मैं बता दूं 6 to 7 क्वेश्चंस 2023 में एवरेज आया है यूनिट 1 से। सेम यूनिट 2 में गया है 6 to 7 क्वेश्चंस। 2023 की बात कर रही हूं, ऑफ ऑल जून, मार्च एंड दिसंबर। कॉम्प्रीहेंशन में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन में से 5 क्वेश्चंस आते हैं, कम्युनिकेशन में से 4 क्वेश्चंस हमेशा आते हैं, मैथ में 3 क्वेश्चन से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, लॉजिकल रीजनिंग में 3 से 4 क्वेश्चंस आते ही आते हैं, हायर एजुकेशन के अंदर 4 क्वेश्चंस मिनिमम आते ही आते हैं, आईसीटी के अंदर 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं, एनवायरनमेंट में 5 to 7 क्वेश्चंस आ रहे हैं। ये 2023 का डेटा मैंने आपको दिया है, तीनों पेपर्स का, सबके सब सब्जेक्ट्स का कॉमन। आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो आप ले भी सकते हो। तो क्या मैंने आपको सिर्फ यही दिखाने के लिए वेबिनार में हम लोग आए हैं? आप एक जिस्ट देख लेते हो, इसके बेसिस के ऊपर मैं आपको आगे कई चीज बताने वाली हूँ। ठीक है, जब भी हम तैयारी करते हैं सबसे पहले आप सिलेबस खोल के देख लीजिए पेपर 1 का। और एजुकेशन के स्टूडेंट्स, मैं एजुकेशन पे ऑलरेडी बहुत बोलती हूँ, एजुकेशन की बात भी करेंगे, बट अभी एक बार पेपर 1 कर ले, क्योंकि आई वांट कि पेपर 1 मजबूत हो और आप आगे जाके बाकी स्टूडेंट्स भी बोलो कि पेपर 1 ऐसे करना है, क्योंकि जितना ज्ञान आप दूसरों को देते हो, जितनी नॉलेज शेयर करते हो, उतनी मिलती है। तो सबसे पहले आप पीडीएफ खोल लीजिए सिलेबस, जब भी इसकी तैयारी करते हैं पीडीएफ मिलेगा आपको सिलेबस का। ठीक है, अब आप ये देखना, आप अपने पेपर 2 का पीडीएफ खोलिएगा और पीडीएफ खोलिएगा जो यूजीसी नेट ने पेपर 1 का दिया है। आप देख पाएंगे 2 से 3 पेजेस के अंदर पेपर 1 का सिलेबस आपके हाथ में होता है, और 7 to 8 पेजेस का सिलेबस होता है पेपर 2 में। तो अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि पेपर 1 में एनटीए ने आपको एक, जिसको कहते हैं ना खुला हुआ सांड, हिंदी में एक होता है कि कोई भी चीज कहीं से भी आ सकती,
एक ये हिंदी का मुहावरा होता है, that anything can come from anywhere. 2 से 3 पन्नों में उन्होंने आपको लूज एंडेड कॉन्सेप्ट्स दे दिए हैं, और पेपर 2 में उन्होंने आपको एक दायरा दे दिया है कि भाई जो भी आएगा इसी के बीच में से आएगा। 5% ऊपर नीचे हो जाता है, आउट ऑफ द सिलेबस क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन पेपर 1 के अंदर कोई डिलिमिटेशन नहीं है। अब अगर आप रिसर्च की बात करते हो, आप इकोनॉमिक्स में खोले, आप एजुकेशन में खोले, उसमें लिखा आएगा क्वालिटेटिव रिसर्च के अंदर, सोशियोलॉजी में नैरेटिव रिसर्च आएगा, ग्राउंडेड थ्योरी आएगा। यहाँ पे रिसर्च एप्टीट्यूड एक यूनिट है, एंड टाइप्स ऑफ रिसर्चेस फुल स्टॉप। अब कौन सी कितनी तरह की रिसर्चेस हैं, कोई कुछ भी आ सकता है। प्लेजरिज्म के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। आई स्टिल रिमेम्बर कि मैंने आज से 2-3 साल पहले स्टैटिस्टिक्स बच्चों को फोकस करना शुरू कर दिया था कि पेपर 1 में स्टैट्स करो, एंड मेरी डिस्कशन होती थी बाकी फैकल्टी से, लाइक नहीं प्रियंका मैम स्टैट्स नहीं आएगा। एंड आप अभी 2023 के क्वेश्चन पेपर्स खोल के देखिए, आप देखेंगे स्टैट्स के ऊपर रिलायबिलिटी कोफिशिएंट, कोरिलेशन के ऊपर, कोरिलेशंस के ऊपर, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स, जेड स्कोर, इन सब के ऊपर क्वेश्चंस आए। क्या ये चीजें हमारे सिलेबस में मेंशन है? नहीं मेंशन है। प्लेजरिज्म के कितने लेवल्स हैं, कौन सा डे कौन सा होता है, टीचिंग एप्टीट्यूड की मैं बात करूं, इट्स नॉट रिटन इन द सिलेबस, एंड दैट इज द रीजन पेपर 1 एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है स्टूडेंट्स के लिए, कि जहां पे कोई डिलिमिटेशन ही नहीं है वहां पे आप क्या पढ़ोगे। तो यहाँ पे आपको एक स्ट्रैटेजी फॉलो करनी होती है। सबसे पहले गो थ्रू द सिलेबस एंड पिक हाई वैल्यू टॉपिक्स। इसको मैं कनेक्ट करूंगी जो मैंने आपको स्लाइड दिखाई थी कि कौन से यूनिट में से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, तो अब हाई वैल्यू टॉपिक्स और स्मार्ट वैल्यू यूनिट्स की मैं बात करूंगी। क्या आप सभी की सभी यूनिट्स पढ़ सकते हो? अगर मेरे को बोलना है, मैं बोलूंगी नहीं। नहीं, आप यूनिट 1 के हर यूनिट को अच्छे से 100% नहीं पढ़ सकते। अगर आप 70% भी अच्छे से पढ़ते हो तो यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। अब ये जो 70% पढ़ना है, ये कैसे सिलेक्ट करेंगे और कौन सी यूनिट से करेंगे? देखिए, आपको इंश्योर करना है कि जो यूनिट नंबर 1 है, टीचिंग एप्टीट्यूड, इसको आपको करना ही करना है। 7 क्वेश्चंस इसमें से पूछे जाते हैं, और एजुकेशन के स्टूडेंट्स आपके लिए आसान है। बाकी स्टूडेंट्स जो कॉमर्स मैनेजमेंट वाले हैं, थोड़ा टेक्निकलिटी किताब में आपको मिल जाती है, वो पढ़ना है। और आधे क्वेश्चंस तो इसमें से बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं कॉमन सेंस वाले क्वेश्चंस होते हैं, कि अगर ये हुआ क्लास के अंदर तो आप क्या करेंगे, है ना। कम्युनिकेशन, क्लासरूम कम्युनिकेशन के अंदर अगर कोई कम्युनिकेशन यूनिट से आ गया तो आप क्या करेंगे। अच्छा, वही लेवल्स ऑफ टीचिंग है, उनके ऊपर क्वेश्चन आता ही आता है। अंडरस्टैंडिंग लेवल, मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल हमने किया हुआ है, किताब के अंदर दिया हुआ है। तो ये यूनिट ना आसान है, लगेगा क्या चीज कहाँ से पूछ ली, लेकिन ये यूनिट बहुत आसान है, इसको बिल्कुल भी छोड़िएगा मत। This is a high value unit. Now I come to unit 2, research aptitude. ये कैसी यूनिट है? This is the रामबाण। Both these units ना, यूनिट 1 और यूनिट 2, आप हैरान होंगे, मैंने ऐसे ऐसे फैकल्टीज देखे हैं जो पेपर 1 पढ़ाते हैं और उनको पेपर 1 का नाम ही नहीं पता। वो इसको बोलते हैं पेपर 1 जनरल स्टडीज, कॉमन पेपर, वेरएस पेपर 1 का नाम है टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड। तो जिसका नाम ही टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड है, तो क्या आप गलती से भी यूनिट 2 छोड़ सकते हो? मैक्सिमम स्टूडेंट्स कहते हैं, मेरे तो अब नहीं कहते, पहले जरूर कहते थे रिसर्च से डर लगता है, रिसर्च ये रिसर्च वो, राइट। लेट इट बी, इस यूनिट को आप नहीं छोड़ सकते। और इसके अंदर नंबर लाने टीचिंग एप्टीट्यूड से भी इजी है। आपको टाइप्स ऑफ रिसर्च करनी है, क्वेश्चन आएगा ही आएगा उसके ऊपर। सैम्पलिंग के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। वेरिएबल्स के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। स्टेप्स ऑफ रिसर्च के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। प्लाजियरिज्म के ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये यूनिट इज लाइक अ रामबाण, आई एम टेलिंग यू। यूनिट 1 और यूनिट 2 आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है एट ऑल। नाउ आई कम टू यूनिट 3। आज मेरी सीसैट की क्लास थी, जो आईएएस में पेपर होता है, आईएएस का भी पेपर आने वाला है। आई टीच
CSAT ऑल्सो। CSAT में 40 से 50% का जो पेपर होता है वो कॉम्प्रीहेंशन का आता है, कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस 50%। और कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी यूनिट है कि आप लिखवा लीजिए 5 क्वेश्चंस जो है वो कॉम्प्रीहेंशन से आएंगे ही आएंगे, और ये सबके लिए ना एक समान ही होती है, क्योंकि कभी भी कॉम्प्रीहेंशन पैसेज रिपीट नहीं होता। यहाँ पे सिर्फ आपका संतुलन देखा जाता है, बैलेंस देखा जाता है कि पहली लाइन पढ़ी, अंग्रेजी थोड़ी सी टफ लगी, या एक ऐसा टॉपिक आ गया जिसके बारे में आपको नहीं पता। फॉर एग्जांपल हमारे हिंदी के स्टूडेंट है, अगर आप जीएनपी की बात कर लो, जीडीपी की बात कर लो, इकोनॉमिक्स का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, उसका पैसेज आया, वो घबरा जाएंगे। यही तो वो चेक कर रहे हैं कि एक बेसिक इंडिया का, आपका नेशनल लेवल का कोई कॉन्सेप्ट आ गया, और एक आप कल को असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हो, कोई ऐसा टॉपिक आ गया, तो क्या आप घबरा जाओगे? वो डेलिबरेटली ऐसे कॉम्प्रीहेंशन डालते हैं। कभी कभी इजी आता है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, 2022 में स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पैसेज आया था, स्टैटिस्टिक्स के ऊपर पैसेज, राइट? तो इजी था अगर आपके पास स्ट्रैटेजी सही थी। तो कॉम्प्रीहेंशन में क्या होता है कि किसी भी तरह का पैसेज आए तो उसकी पहली लाइन दूसरी लाइन पढ़ के आपको घबराना नहीं है। आपको ये मेरी लाइन जरूर अपने दिमाग में डाल लीजिए कि ये मुझे डराने के लिए आया है, राइट? एंड यू आर रेडी टू फेस दैट डेंजर। बी फियरलेस, उसको पढ़ो और पैसेज के हिसाब से आप आंसर करो। क्या इसकी प्रैक्टिस जरूरी है? बहुत जरूरी है, लेकिन अंडर गाइडेंस। अगर आप खुद से पैसेजेस पढ़ते रहोगे, सी आई एम वेरी ऑनेस्ट, आई एम ब्लंट, कॉम्प्रीहेंशन हमेशा अगर आप गाइडेंस के अंडर करते हो, अगर आपको कोई गाइड करने वाला हो स्पेसिफिकली कॉम्प्रीहेंशन में, तो उसकी प्रैक्टिस का अलग ही आपको फायदा मिलता है। रिसर्च एप्टीट्यूड खुद से पढ़िए, टीचिंग एप्टीट्यूड, मतलब यू ऑफ कोर्स नीड गाइडेंस, बट आप खुद प्रैक्टिस करेंगे बेहतर रहेगा। कॉम्प्रीहेंशन में एटलीस्ट शुरू में यू नीड गाइडेंस। ज्यादा ज्यादा पैसेजेस आप करिए, और इसके लिए आप बी अवेयर, जियो पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, देश के अंदर क्या हो रहा है, इन्वायरमेंटल इश्यूज क्या हैं, ये आपको जब पता होगा ना, तो टफ से टफ पैसेज भी अगर आप आता है तो आप डरोगे नहीं, क्योंकि उस टॉपिक के ऊपर तो आपको ऑलरेडी नॉलेज है। अगर आपको नहीं पता जियो पॉलिटिक्स क्या है, जियो पॉलिटिक्स के ऊपर पैसेज आ गया, आप तो घबरा जाओगे। यही अगर आपने सुना हुआ है नाम, पैसेज आ गया जियो पॉलिटिक्स पे, यू आर ओके विद इट। क्योटो प्रोटोकॉल के ऊपर आ गया, आपको ऑलरेडी पता है, यू नो अबाउट इट, यू विल नॉट बी स्कैर्ड, तो हाफ ऑफ द गेम इज वन देयर। तो कॉम्प्रीहेंशन अलग हेल्प करता है। तो ये 3 यूनिट्स तो आपको मिस करनी नहीं है। फिर आती है कम्युनिकेशन। ये सबसे ज्यादा वन ऑफ द मोस्ट इजी यूनिट्स है, मोस्ट इजी यूनिट्स। इसमें आपके टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन है, थ्योरीज है। आजकल मास कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा फोकस आ रहा है, मास कम्युनिकेशन थ्योरी, क्लासरूम कम्युनिकेशन, इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, बैरियर्स क्या है, इतना आता है ना, मोर देन इनफ। 5 में से 3 क्वेश्चन आपके पॉकेट में है। गो फॉर, मतलब आई ऑलवेज से गेट टू द बेसिक्स। अगर स्टूडेंट्स को ये नहीं पता हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन क्या है, वर्टिकल कम्युनिकेशन क्या है, डायगोनल कम्युनिकेशन क्या है, तो आप हेलिकल थ्योरी पढ़ लो, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आपके बेसिक्स ही क्लियर नहीं है। Are you getting it? राइट? तो एरिस्टोटेलियन मॉडल पढ़ लो, अगर आपको यही नहीं पता कि बैरियर टू कम्युनिकेशन क्या है, या इफेक्टिव कम्युनिकेशन क्या है, क्लासरूम कम्युनिकेशन मॉडल्स क्या है, नॉट गोइंग टू बी ऑफ यूज। सो गो टू द बेसिक्स। कम्युनिकेशन के मॉडल्स जो है, कम्युनिकेशन को समझो, क्योंकि कम्युनिकेशन में मॉडल्स में अब क्वेश्चंस कम आने शुरू हो गए। टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, और वो आपको जो प्रैक्टिकल सिचुएशंस होती हैं उसके बेसिस सिचुएशनल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो ये आप 4 यूनिट्स तो आप अच्छे से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट यूनिट आती है मैथमेटिकल रीजनिंग की। यही आती है, यूनिट नंबर 5 यही है ना। अब इसमें क्या करें, आप तो घबरा जाते हैं। तो इसके अंदर बेसिक परसेंटेजेस, रेशियो, जो हम स्कूल में कर रहे हैं इतना तो हम कर सकते हैं, परसेंटेज आना चाहिए, है ना। क्या आपका एसपी होता है, क्या कॉस्ट प्राइस होता है, क्या छोटा छोटा सा प्रॉफिट होता है, क्या लॉस होता है, क्या डायरेक्शन होती है, क्या टाइम डिस्टेंस होता है, क्या कैलेंडर होती है, क्या क्लॉक होती है, इतना कर सकते हैं हम। इतना सा कर लीजिए बस। ये जो आपको टॉपिक्स दिख रहे हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बस
इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आप करते रहिए, इसके बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। बस शर्त एक है कि आपको प्रैक्टिस करना है, इससे ज्यादा मत करो। इसके अंदर एक वो लॉजिकल में मैं काउंट कर लेती हूँ, अल्फा सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, मिसिंग सीरीज, वो एक्चुअली में लॉजिकल रीजनिंग और कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स का एक ओवरलैपिंग स्टेज होता है। तो आप यूनिट 5 में इतने से कॉन्सेप्ट आप कर सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं यूनिट 6 की, जो कि है लॉजिकल रीजनिंग। इसको बहुत स्मार्टली आपको प्ले करना पड़ेगा। क्यों? सिलॉजिज्म होता है आराम से। क्या मैं आपको ये बोल सकती हूँ कि सिलॉजिज्म के कुछ ये रूल्स हैं और इन्हीं रूल्स के अतिरिक्त ही क्वेश्चंस आएंगे? तो ये झूठ होगा। फैक्ट ये है कि बड़े बड़े टीचर्स जो हैं उनको भी सिलॉजिज्म बेस्ड क्वेश्चंस, आर्ग्यूमेंट्स, पॉलिसीज नहीं समझ में आती हैं। आप जितनी मर्जी पॉलिसीज कर लीजिए, आप जितने मर्जी लॉजिकल आर्ग्यूमेंट्स कर लीजिए, टाइप्स कर लीजिए, न्याय में आप जो लॉजिक लगाते हैं वो लगा लीजिए, कोई भी नहीं बोल पाएगा कि 5 में से 5 क्वेश्चन कोई भी कर पाएगा। एंड आई एम टेलिंग यू दिस, नो बडी विल बी एबल टू डू दीज 5 क्वेश्चंस, क्योंकि जो फ्रेमर है उसने अपने माइंड से बनाया, या तो कोई रिपीटेड क्वेश्चन होगा, और कई बच्चे जिनको ये यूनिट समझ में नहीं आती, और मैं बहुत बेबाक होके बोलती हूँ, बेटा नहीं आती तो दिमाग आपको तंग करने की जरूरत नहीं है। जो यूनिट्स मैंने आपको बोली है उनके ऊपर फोकस करो, क्योंकि मैं आपको नहीं बोल सकती कि लॉजिकल रीजनिंग पे 5 क्वेश्चंस आएंगे। 3 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं, हो सकता है 5 क्वेश्चन आ जाए, बट 5 क्वेश्चन मिनिमम टीचिंग एप्टीट्यूड में आएंगे, 5 रिसर्च में आएंगे ही आएंगे, 6 से 7 8 क्वेश्चन आ जाते हैं। कम्युनिकेशन में 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे, कॉम्प्रीहेंशन में 5 क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। आपके 20 क्वेश्चन तो यहीं पे ही हो गए। लॉजिकल रीजनिंग अगर आपको कमजोर लगती है, तो जो चीजें इजी लगती है उनको कर लो, और इतने अच्छे से करो कि उसमें से जो कोई क्वेश्चन आता है यू आर एबल टू सॉल्व इट। सो आई होप यू गॉट माई पॉइंट, कि कौन सी यूनिट ज्यादा स्ट्रांग है और कौन सी यूनिट स्ट्रेटेजिकली अगर नहीं आती है, उसमें से कुछ कॉन्सेप्ट्स छोड़ दो तो बिल्कुल छोड़ दो, फिर टाइम वेस्ट नहीं करना है उसके ऊपर, जो पकड़ा है उसके ऊपर पकड़ बनाओ। अब जो नेक्स्ट यूनिट है उसके लिए मैं बहुत क्लियरली बोलती हूँ कि इसको मत छोड़ना। अब वो क्या है? डीआई, डेटा इंटरप्रिटेशन। मेरा एक स्टूडेंट है, नाम नहीं लूंगी अभी, वो उड़ीसा में है, उनकी जॉब लग गई है एज असिस्टेंट प्रोफेसर, एंड स्टेट गवर्नमेंट जॉब है, और वो पेपर दे के आए। हाल ही में हुई है बात उनकी, 2023 में उनका नेट और जेआरएफ दोनों क्रैक हुआ है, बट नेट से ही उनका नियुक्ति जो है वो हो गई है। तो डीआई करके आ गए, बहुत खुश थे, क्योंकि बाकी बच्चे जो थे वो कह रहे थे कि डीआई बहुत टफ आया है, 5 क्वेश्चंस, और उसके सारे के सारे गलत हुए थे। सबके सब क्वेश्चंस डीआई के वो गलत करके आया था। हाउएवर बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, पुराने बच्चे उनका नाम भी जानते होंगे। तो उनके क्वेश्चन गलत हो गए। क्यों गलत हुए? ओवर कॉन्फिडेंस, क्योंकि मैंने बोला था डीआई करना ही करना है, और उनको लगा कि बहुत सिंपल है, तो केयरलेस एटीट्यूड में कि हाँ भाई मैम ने कहा था कि ये रूल्स है, इनको याद कर लो, लगाना है और हो जाएगा काम, तो जल्दबाजी में डीआई में वो गड़बड़ कराए। क्या आपको लगता है एक बच्चा जिसके 5 क्वेश्चंस गलत हो, और यहाँ पे हमारे वो बच्चे हैं जिनका 1 नंबर से या 1 क्वेश्चन से जेआरएफ छूटता है, इमेजिन करो उस बच्चे का इंटेलेक्चुअल लेवल, कि 5 क्वेश्चंस वो गलत करके आ रहा है डीआई में, और फिर भी वो जेआरएफ के अंदर सिलेक्ट हो रहा है जनरल कैटेगरी, राइट? क्यों? स्ट्रैटेजी थी, जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, जो उन्होंने फॉलो की थी। अगर उनके यही क्वेश्चन सही होते तो उन्होंने एक अलग ही हम लोगों का जो कट ऑफ है वो ले जाना था, उनके क्वेश्चन है आगे हमारा कट ऑफ कर देना था। तो ये एक ऐसी यूनिट है डीआई जो कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स के दिमाग में नहीं आती है, हम सब इससे घबराते हैं। मैं सी सैट की आज क्लास ले रही थी बच्चों की, आज थोड़ी काउंसलिंग करनी थी क्योंकि उनको डाउट्स थे, कुछ था। तो एक लड़की है जो कि मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, सुमेधा नाम है उनका, का होगा ही होगा, शी इज गोइंग टू बिकम एन आईएएस, क्योंकि पता चल जाता है टीचर्स को। मैं तो सिर्फ सी सैट पढ़ाती हूँ, बाकी टीचर्स भी हैं, हम लोग डिस्कस करते रहते हैं। तो यू नो शी वाज टेलिंग मी कि मैथ मुझे इतना इंटरेस्टिंग नहीं लगता है मैम, क्योंकि मैं सी सैट पढ़ाती हूँ तो उसमें हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। तो मैथ मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैम मैंने देखा है कि मैथ के क्वेश्चन मेरे सही हो जाते हैं और कॉम्प्रीहेंशन के क्वेश्चन में मुझसे गड़बड़ हो जाती है। उसका रीजन क्या है?
कॉम्प्रिहेंशन वो कहती है उसको ज्यादा पसंद है, क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन में आती है सब्जेक्टिविटी, और मैथ उनको नहीं पसंद है, लेकिन मैथ के कॉन्सेप्ट्स उन्होंने किए हैं और मैथ में उनके नंबर आ रहे हैं। ठीक है, तो ये इसका फायदा है। आप और मैं, हम डिफरेंट सोशल साइंसेस, 83 सब्जेक्ट्स हैं भाई सोशल साइंसेस में। हम क्यों है सोशल साइंसेस में? क्योंकि हमारा एप्टीट्यूड मैथ वाला नहीं है। तो इंटेलिजेंट बच्चा कौन है? जिसको पता है कि डीआई में से 5 क्वेश्चन आएंगे, और डीआई कॉन्सेप्ट्स जो है वो 10 कॉन्सेप्ट्स है मैक्सिमम। मैक्सिमम आजकल परसेंटेजेस पूछी जाती हैं, परसेंटेजेस से नंबर निकालने होते हैं। इसके अंदर भी रेशियो कभी कभी पूछ लेते हैं, नंबर्स पूछ लेते हैं। क्या ये मुश्किल है? नहीं, सिर्फ और सिर्फ हम क्वेश्चन को समझ नहीं पाते। वो जो चार्ट्स बने आते हैं उनको देख के हम घबरा जाते हैं। टाइम का डर होता है हमारे सिर के ऊपर कि टाइम निकली जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। तो ये मैं हमेशा बोलती हूँ कि हम लोगों का मैथ कमजोर है, ये आप भी जानते हैं, ये मैं भी जानती हूँ। बट हमारी स्ट्रैटेजी यही होनी चाहिए कि लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स है, जैसे एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है। अभी मैं आपको बोलती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ कि 16 × 16 क्या होता है। आप सब घबरा गए होंगे मैक्सिमम। क्या मैं आपको 1 मिनट दूं तो आप निकाल नहीं पाओगे? आपको बेसिक मल्टीप्लीकेशन आती है, आपको थोड़ा समय लगेगा, आप मेरे को बता दोगे 16 × 16 क्या है, क्योंकि बेसिक्स क्लियर है। डीआई में भी सेम चीज है, वो कुछ गिने चुने कॉन्सेप्ट्स है। परसेंटेजेस हो गया, नंबर्स हो गया, कहीं रेशियो हो गया, फ्रैक्शन हो गया, तो चलो मैं थोड़ा सा मान सकती हूँ कि यू नो आप कंफ्यूज हो सकते हो। लेकिन डीआई को जितना ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होता है करिए, क्योंकि लिमिटेड कॉन्सेप्ट है और नंबर खूब सारे। ओके, अब हम थोड़ा सा आईसीटी यूनिट के बारे में बात करते हैं। आईसीटी में क्या आप सब कुछ कर सकते हैं? बेसिक बेसिक सा तो हम जानते हैं। अगर मैं आपको बाइनरी कैलकुलेशंस दे दूं, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाओगे। कंप्यूटर्स मेरे पास भी था, ऑप्शनल सब्जेक्ट, स्कूल के अंदर भी कॉलेज में भी। अगर मेरे को भी आप पेपर 1 का कोई टफ सा क्वेश्चन दे दोगे बाइनरी का, मैं नहीं कर पाऊंगी। टफ क्वेश्चन कह रही हूँ, बेसिक तो सब कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, फटाफट अभी निकाल के बता देंगे। टफ क्वेश्चन, ओके। पाइथन के ऊपर क्वेश्चन आ गया, सॉफ्टवेयर के ऊपर, कर पाओगे? आर के ऊपर कोई क्वेश्चन आ गया टेक्निकल, कर पाओगे? एसएएस के ऊपर कोई क्वेश्चन आया, कर पाओगे? हाँ। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है, एजुकेशन में क्या इनिशिएटिव्स है, आप आंसर कर पाओगे। 5 क्वेश्चंस आएंगे ना, आप सिर्फ 2 कर पाएंगे। एंड आई एम नॉट हियर टू डिमोटिवेट यू, आई एम हियर टू शो यू अ पिक्चर, जो ट्रेंड चल रहा है। तो क्या आपको इस यूनिट को छोड़ना है? नहीं, आपको इस यूनिट में वो चीजें पिक करनी है जो आपको अच्छे से पता है। जैसे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स क्या है टेक्नोलॉजी के अंदर, बेसिक बेसिक सॉफ्टवेयर्स कौन से होते हैं, टेक्नोलॉजी एजुकेशन में कैसे मदद कर रही है, ये बेसिक बेसिक से आप कर लीजिए, ताकि आपके 5 में से 2 क्वेश्चंस तो मिनिमम सही हो जाए। दिस इज व्हाट इज स्ट्रैटेजी। जो टेक्नोलॉजी में जो चीजें नहीं आती वो नहीं आती है। अगर बाइनरी कैलकुलेशन नहीं करनी है तो अपना इस टाइम पे दिमाग मत लगाइए उस तरफ, उधर लगाइए, जो कम करिए पर अच्छा करिए। ठीक है, अब मैं बहुत कंट्रोवर्शियल टॉपिक पे आने वाली हूँ, क्योंकि वो यूनिट नंबर 9, पीपल, डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट। मैं क्लियरली अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, ये भी मेरा ऑप्शनल था साइंसेस, जब मैंने अपने ग्रेजुएशन में साइंसेस लिया था, +1 +2 में भी। एनवायरनमेंट में आप कभी भी दिल, दिमाग, जान सब लगा दो, 100% नहीं कवर कर पाओगे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि आर्सेनिक की मात्रा, क्योंकि मैं तो क्वेश्चन पेपर्स मेरे पास होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के, मैं तो पढ़ती हूँ, आर्सेनिक की मात्रा इंडिया में कितनी अलाउड है पानी में, इंडस्ट्रीज में? यूके में आर्सेनिक कितना अलाउड है, कितना प्रतिशत? यूएस में कितना प्रतिशत अलाउड है? कौन आंसर कर पाएगा? फलानी फलानी कोई मीटिंग हुई थी, उसके अंदर चाइना के अंदर पार्टिसिपेट किया या नहीं किया, उनकी एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर CO2 की कितनी परसेंटेज आई थी? क्या मैं बता पा सकती हूँ? नहीं, मुझे भी डेटा चेक करना पड़ेगा। तो ये एक ऐसी यूनिट है ना, जिसको जो एनवायरमेंटल साइंसेस के स्टूडेंट्स हैं वो भी नहीं बोल पाएंगे कि हम 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस मार्क कर पाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। तो आप और मैं, जिनका एनवायरमेंट सब्जेक्ट ही नहीं है, हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम 5 आउट ऑफ 5 ले आएंगे?
अगर 2 ले आए वही बड़ी बात है। तो ऐसी यूनिट को छोड़ना है नहीं, क्योंकि इन्वायरमेंट ट्रेंड में है, इन्वायरमेंटल एजुकेशन बहुत ट्रेंड में है। तो लेकिन क्योंकि ट्रेंड में है तो हम अपना दिमाग टेंशन में लेके आएंगे? नो, यहाँ पे अगेन स्ट्रैटेजी क्या है? बैक टू बेसिक्स। क्या करेंगे आप? ऐसी चीजें जो चेंज नहीं होती, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, बायोफ्यूल्स क्या होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है ना, कौन सी गैसेस होती हैं, CO2 की मात्रा कितनी है, फिर डिजास्टर्स क्या होते हैं, सब जानते हैं नेचुरल डिजास्टर्स क्या होते हैं, अर्थक्वेक हो गया, रिक्टर स्केल के अंदर कौन सा स्ट्रॉन्ग माना जाता है, कौन सा वीक माना जाता है, इतना तो हम सब कर सकते हैं। मिटिगेशन स्ट्रैटेजीज, किस तरह जो डिजास्टर्स है, नेचुरल डिजास्टर्स है, उनको मिटिगेशन जो है वो उनकी कैसे होती है, ये तो आप मैं कर सकते हैं। वाटर अल्कलिन कब होता है, एसिडिक कब होता है, इतना तो हम कर सकते हैं, है ना। ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फेयर क्या होता है, आयनोस्फेयर क्या होता है, इतना तो हम कर सकते हैं। अर्थ के लेयर्स भी हम कर सकते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन, CO2 CO में फर्क, वाटर के अंदर कितने, ये सब क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप कर लीजिए, दैट्स मोर देन इनफ। इसके साथ ही साथ क्योटो प्रोटोकॉल क्या है, अगर आप ये पढ़ रहे हो तो इंश्योर करो कि कितनी कंट्रीज थी, कौन से साल में आया, क्या क्या हुआ, क्या इनिशिएटिव्स थे, आपको पता होना चाहिए। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पता होना चाहिए। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या हैं, पता होने चाहिए। मिलेनियम डेवलपमेंटल गोल्स कौन से हैं, पता होने चाहिए। दैट्स अबाउट इट। नेशनल एनवायरमेंटल डे कब होता है, वर्ल्ड एनवायरमेंट डे कब होता है, अगर लेटेस्ट को इंडिया ने इनिशिएटिव लिया है हमारी मिनिस्ट्री ने, अगर आपको पता है वेल एंड गुड, ज्यादा डिटेल में मत जाना, टाइम वेस्ट होगा, माइंड भी खराब होगा। क्योंकि एज आई सेड, आर्सेनिक, सिलिकॉन, मर्करी, इनकी परसेंटेजेस ये किसी के बस की बात नहीं है 100% जानना। Okay, I hope you're intelligent. You have gotten my point. Where you have to focus, write down the topics, know them completely. क्योंकि ये बेसिक टॉपिक्स हैं, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्योटो के ऊपर या मॉन्ट्रियल के ऊपर या SDGs के ऊपर या MDGs के ऊपर या ग्रीन हाउस के ऊपर, ये जो गैसेस है, मीथेन, बायोफ्यूल्स, इनके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसको आप कर पाओ, जो हमें पता है आउट ऑफ द बॉक्स है वो नहीं होने वाले तो उनको छोड़ दो। सो दिस इज व्हाट आई वेयर आई से दैट रिमूव इट। एंड यहाँ पे ही था, मैंने कहा था काफी टीचर्स या फैकल्टीज नाराज हो जाते हैं मेरी इस बात पे जब मैं स्टूडेंट्स को ऐसे गाइड करती हूँ, क्योंकि उनका सब्जेक्ट है तो उनको थोड़ा सा बुरा लग जाता है। अब आते हैं लास्ट यूनिट पे, यूनिट 10, हायर एजुकेशन, चैलेंजिंग यूनिट। ठीक है, बट इसके अंदर ना फिर भी सिंपल चीज है। एंशियंट यूनिवर्सिटीज आप कर लीजिए, है ना। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हमारे देश में कितनी है, स्टेट यूनिवर्सिटीज कितनी है, डीम्ड यूनिवर्सिटीज कौन सी होती है, एंशियंट सिस्टम ऑफ एजुकेशन क्या है। फिर उसके बाद अपने डिफरेंट डिफरेंट जो कमीशंस थे, है ना, प्री इंडिपेंडेंस कमीशन जो है, प्री इंडिपेंडेंस हो गया, पोस्ट इंडिपेंडेंस कमीशन जो है, ये आप कर लीजिए। ये मुश्किल नहीं है, ऑनेस्टली ये मुश्किल नहीं है। और अभी जैसे तमन्ना वाज आल्सो इंट्रोड्यूसिंग एक टॉपिक था, अभी NEP 2020 का ड्राफ्ट आया था, मैंने प्रिडिक्ट कर दिया था अपने दोनों सब्जेक्ट के स्टूडेंट्स को कि NEP 20 के ऊपर क्वेश्चन 2 तो आएंगे ही आएंगे। पेपर 1 में भी आते हैं, पेपर 2 में भी आते हैं, पेपर 1 कोई भी खोल के देख लो, 83 सब्जेक्ट्स का NEP 2020 पे क्वेश्चन आता है। एंड दैट इज द रीजन वाई हमारी दोनों जो बुक्स है, पेपर 1 की भी पेपर 2 की भी और आने वाले पेपर 2 के सब्जेक्ट्स की भी, उसमें NEP 2020 पे फोकस, मतलब दिस इज नोन एज पावर ऑफ प्रिडिक्शन, कि जो ट्रेंड में आया है देश में उसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा। कितने 36 ईयर्स के बाद पॉलिसी आई है, तो पेपर 1 में एक क्वेश्चन यूनिट 10 का तो NEP 2020 पे आएगा। अगर आप NEP 2020 अच्छे से कर सकते हो तो 2 नंबर आपके पॉकेट में है। ठीक है, पोस्ट इंडियन जो कमीशन होते हैं, पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन कमीशन, हिस्ट्री के कमीशंस मुश्किल होते हैं, मैं समझती हूँ, इनके साल कर लो, इनके अंदर भी बहुत टफ क्वेश्चंस आते हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी है जिसके अंदर गर्ल्स को इक्वल करिकुलम के तहत एग्जामिनेशन में बैठने दिया गया था, मेड्रास यूनिवर्सिटी है या बॉम्बे यूनिवर्सिटी है, इसके अंदर टेंशन रहती है, हमको रिसोर्सेज नहीं मिल पाते, आप गूगल करके देखिएगा, इग्नू के नोट्स के अंदर भी क्लैश आ जाता है, राइट। सो अगेन यूनिट 10 इज वेरी चैलेंजिंग। तो इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी NEP 2020, ठीक है, एंशियंट यूनिवर्सिटीज हो गई या सेंट्रल स्टेट यूनिवर्सिटीज हो गई, ये चीजें इंपॉर्टेंट है।
यहाँ पे आप यूनिट 10 को अच्छे से कर पाओगे। अगर कमीशंस के अंदर आपको प्रॉब्लम है तो एटलीस्ट कोठारी कमीशन क्यों कहलाया जाता है कॉम्प्रिहेंसिव कमीशन आपको पता होना चाहिए। यूनिवर्सिटी एजुकेशन कब आया कमीशन, कौन चेयरपर्सन था, इतना पता होना चाहिए। कोठारी कमीशन के चेयरपर्सन कौन थे, कितनी लैंग्वेजेस के अंदर वो ट्रांसलेट हुआ, एनसीएफ क्या है, कंस्ट्रक्टिविज्म क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेम हायर एजुकेशन और यूनिट 1 में एक चीज और कॉमन होती है कि एजुकेशन और साथ ही साथ में लर्नर साइकोलॉजी, ये एक मिक्स मैच है यूनिट 1 का और यूनिट 10 का। लर्नर साइकोलॉजी के ऊपर क्वेश्चंस आते आते हैं। और स्कूल्स ऑफ साइकोलॉजी क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कंस्ट्रक्टिविज्म का मैंने अभी नाम लिया, तो कंस्ट्रक्टिविज्म एक स्कूल ऑफ साइकोलॉजी है जो यूनिट 1 में कवर होता है और उसके ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। और जो जो भी अपने करिकुलम फ्रेमवर्क अभी आ रहे हैं वो कंस्ट्रक्टिविज्म के प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है। तो ये छोटे छोटी चीजें हैं जो आपको पेपर 1 में 40% अबव, 40% क्या मैं बोलूंगी, आप 45 और 50 क्वेश्चंस कर पाएंगे अगर आप इस स्ट्रैटेजी से चलते हैं। आर यू गेटिंग इट? तो दिस इज व्हाट इज व्हेन वी से कि आप एक टाइम टेबल बनाओ, आप लिखो कि कौन से टॉपिक्स आप नहीं करोगे। मैं तो ऐसे करती थी कि ये टॉपिक्स हैं, ये मेरे बस की, जैसे मैंने आपको इन्वायरमेंट के बारे में बताया कि मेरा खुद का इन्वायरमेंटल एक ऑप्शनल सब्जेक्ट था, लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है जानने में, होना चाहिए वैसे, कि आर्सेनिक की मात्रा चाइना में कितनी मानी गई है, यूएसए में कितनी है, इंडिया में कितनी है, ये तो पता होना चाहिए। मर्करी के क्या लेवल्स होते हैं, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स क्या है, ऑल ऑफ दैट। तो जो चीज नहीं करनी उसको नहीं करनी, उस पर समय व्यर्थ नहीं करना। और जो चीज बेसिक्स आपको पकड़ने इन्वायरमेंट में या हायर एजुकेशन में, उनको ऐसे करो कि अच्छे से करो। नालंदा यूनिवर्सिटी है, क्या कॉमन है तक्षशिला में और नालंदा के अंदर? बिहार में कौन सी सिचुएटेड है, गुजरात में कौन सी सिचुएटेड है? ठीक है, ये तो इतना सा तो हमको, चरक संहिता क्या है, सुश्रुता संहिता क्या है, ये तो बेसिक बेसिक सी चीज है एंशियंट इंडियन एजुकेशन को लेके। तो एंशियंट इंडियन एजुकेशन के ऊपर अभी बहुत क्वेश्चंस आएंगे। उसका रीजन ये है कि जो एनईपी 20, एक तो गवर्नमेंट रिलेटेड है, it's without any I think argument we can say that कि एनईपी 2020 में क्लियरली बोला गया है कि इंडियन हेरिटेज के ऊपर हम फोकस करेंगे। तो एंशियंट इंडियन एजुकेशन के ऊपर बहुत क्वेश्चंस आएंगे। एंड जो हिस्ट्री है वो चेंज नहीं होने वाली। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एक्ट्स आ रहे हैं, उसके अंदर अमेंडमेंट्स आएंगे। आप हो सकता है उनको जाने, हो सकता है आपकी पहुंच के बाहर हो सकता है आपको नहीं पता, लेकिन हिस्ट्री चेंज होने वाली नहीं है। सो जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज हैं उनकी लोकेशंस है, विहारास क्या है, कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं जिनके अंदर विहारास होते थे जो कनेक्टेड है, आई होप विहारास पता है सबको। बुद्धिज्म के समय कौन सी आई, जैनिज्म के क्या आया, वेदांत फिलोसफी, ऑर्थोडॉक्स सिस्टम, हेटेरोडॉक्स सिस्टम, ये सब अगर आप यूनिट 10 में कर लेते हो तो एज ऐसे आपके अगर 5 क्वेश्चन आ रहे हैं तो 3 तो आप आराम से कर पाओगे, क्योंकि बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ना, कॉमन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन हमेशा आएगा, याद रखिएगा। जिस कॉन्सेप्ट के आधार के ऊपर यूनिट बनी है, ऐसा नहीं हो सकता कि उस कॉन्सेप्ट को क्वेश्चंस ने कवर ना किया हो। एनटीए है वो टफ क्वेश्चंस डालेगी, उसको भी पता है कि प्रियंका मैम को भी नहीं पता, उनके मैक्सिमम स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा। हाँ, बहुत माशाल्लाह बड़े इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स हैं, उनको शायद पता हो कि अभी लेटेस्ट आर्सेनिक की वैल्यू कौन सी एक्सेप्टेबल है अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशंस इन डिफरेंट डिफरेंट एशियन कंट्रीज और यूरोपियन कंट्रीज और इन द स्टेट्स, तो ऐसे क्वेश्चंस आएंगे। We know about it, you know the strategy, you do not have to get into it as long as you do not love trouble. If you want to, you can go experiment, but I think I have told you my point. Now this is when I say get reliable study materials and avoid reading from frothy guides, available books. मैंने अभी भी देखा है, तभी that was one of the reasons why S. Chand literally, we authored this book on paper 1 and especially on paper 2 also, because हमने देखा, and I can't take the name of the publication house, I cannot, but it was a horror for us. It was such a horror for us that publication house भी ठीक ठाक नाम, अच्छा नाम, और उसके टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर वो बुक इतनी सी थी, एजुकेशन की बता रही हूँ मैं आपको, इतनी सी किताब थी, उसके इतनी मिस्टेक्स थी। टेबल ऑफ, अभी उनका सेकेंड एडिशन आया, उसके अंदर भी टीओसी के अंदर सेम मिस्टेक दोहराई हुई है। यूनिट 5 का नाम यूनिट 4 लिखा हुआ है, एंड यूनिट 4 का तो नाम वैसा ही है, ठीक है। और बिल्कुल जिस्ट के अंदर जैसे पूंजियां होती हैं,
नाम के लिए किताब लिख दी कि बच्चे जो है वो देखेंगे, पतली सी किताब है, हमारा पार हो जाएगा, छोटे छोटे ऐसी किताब से कुछ नहीं होने वाला, नहीं होने वाला है। आई एम बीइंग वेरी ब्लंट एंड ऑनेस्ट विद यू। पेपर वन के ऊपर, बिकॉज एज जस्ट तमन्ना सेड कि आई हैव ऑल द बुक्स इन माई हैंड, कोई भी मार्केट में बुक आती है मेरे पास वो किताब होती है, वो बेसिक किसी भी पब्लिशर की हो। तो हमेशा ये याद रखो बिफोर यू आर बाइंग अ बुक, वेदर इट इज पेपर वन और एनी ऑफ द पेपर टू सब्जेक्ट्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज ऑथर कौन है। मैं पब्लिकेशन हाउसेस का नाम नहीं लेना चाहूंगी क्योंकि एस्टान का वेबिनार है और ये लोग बहुत एथिकल होते हैं कि हमको किसी पब्लिकेशन हाउस को बुरा नहीं बोलना है, बट फैक्ट ये है कि आप मैक्सिमम किताबें खोल के देखिए, पेपर वन की, पेपर टू की, पेपर टू के कुछ पब्लिकेशन हाउसेज हैं जिसमें कंटेंट एसएमईज जो होते हैं वो किताबें लिखते हैं, ऑथर ही नहीं है। मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बता सकती हूँ, नाम नहीं लूंगी क्योंकि फैकल्टी मेरे जान पहचान में ही है, नए नए पब्लिकेशन हाउस है, उनकी 3rd एडिशन आई पेपर वन की किताब, और वो भी एसएमई ने लिखी हुई थी। एसएमईज होते हैं जो कंटेंट मैटर एक्सपर्ट्स होते हैं, और हम भी हैरान हो गए कि 3rd एडिशन पे एक फोटो है फैकल्टी की जो पेपर वन पढ़ाते हैं, और वो बुक जो है वो फैकल्टी ने लिखी भी नहीं हुई। इस तरह की कमर्शियलाइजेशन हो रही है। 3rd एडिशन में एकदम से आता है कि इस बुक की ऑथर ये हैं और उनकी फोटो लगी हुई है। सो दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि डिफरेंट डिफरेंट पब्लिकेशन हाउस है, थोड़ा सा एक्टिव रहिए। कुछ भी खरीदते हैं उसका पुराना एडिशन एक बार देख लीजिए, फ्लिपकार्ट के ऊपर, अमेजोन के ऊपर, कमर्शियलाइजेशन के नाम के ऊपर, या कुछ फैकल्टीज स्टूडेंट्स का दे शुड नॉट मेक अ फूल ऑफ देम। अपने रिसोर्सेज को स्टैंडर्ड करिए। कोई भी अच्छा पब्लिकेशन हाउस ठीक है, बहुत बढ़िया, ऑथर कौन है, ऑथर का यूजीसी नेट में एक्सपीरियंस है या नहीं है, अगर है तो श्योर सी बात है कि आप उनको चेक कर सकते हो यूट्यूब के ऊपर, वो करिए, ओनली देन बाय दैट बुक, ट्रस्ट यू मी। बुक्स आइदर मेक यू और ब्रेक यू, और मैं ये बिलीव करती हूँ कि बुक्स हमेशा इन्वेस्टमेंट होती है। यू नो व्हाई? जैसे मैंने आपको बोला कि मार्केट में कोई भी बुक आती है वो मेरे पास होती ही होती है। तमन्ना और एस्टान पीपल और हम लोगों का होता है कि पता होना चाहिए दैट रीड, अगर हम पढ़ेंगे तभी स्टूडेंट्स को हम, जो गलतियां हैं वो हम इंश्योर करेंगे कि हमारी किताब के अंदर ना हो, राइट? हाल ही में एक और किताब देखी जो भी निकाली है जिसके अंदर क्लियरली ये तक बताया हुआ है कि इतने पेपर्स थे, पहले ही बॉक्स के अंदर बताया हुआ है इस टॉपिक में से इतने प्रतिशत क्वेश्चंस आए, इसमें से इतने प्रतिशत क्वेश्चंस आए, इसमें मतलब टॉपिक्स को ब्रेक किया हुआ है। एसएमईज ने बनाई, अगेन कोई ऑथर नहीं, हम नहीं कह सकते 3rd 4th एडिशन में कोई ऑथर का भी नाम उसमें चिपक जाए, हम नहीं कह सकते, बट यू थिंक इट इज पॉसिबल कि हम क्लियर कट डिमार्केट कर दें कि इस यूनिट के अंदर ये जो क्वेश्चन था ये लर्नर कैरेक्टरिस्टिक और टीचर या टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर किस में जाएगा, टीचिंग में जाएगा या लर्निंग में जाएगा, क्योंकि आप बाइफरकेट कर रहे हो ना। सो इन चीजों को आप इंटेलिजेंट हो, समझा करो। व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज हैव द बुक्स। सबसे पहले बुक्स इन्वेस्टमेंट होती है लाइफ लॉन्ग, वो बेशक मेरी है या किसी और की भी है। मैं क्यों बोलती हूँ फॉर मी, कि मेरे देखते हुए कि अगर किसी ने बच्चे के साथ गलत किया है हम नहीं करेंगे, अगर किसी ने कुछ अच्छी चीज की है हम उससे भी ज्यादा अच्छा करेंगे, राइट? और हम ये भी हमें पता लगता है कि स्टूडेंट्स की साइकोलॉजी के साथ कैसे कमर्शियल हाउसेस खेलते हैं, राइट? सो दैट इज व्हाई आई से कि रिलायबल पीपल टेक गाइडेंस फ्रॉम दोज टीचर्स जिनको आप जानते हो, जिनको आप टेस्ट कर चुके हो, और एक बार टेस्ट कर चुके हो तो उनको फॉलो करो, और अपनी किताबें, अच्छी किताबें खरीदो, राइट? बहुत ज्यादा बुक्स अवेलेबल है, एज आई टोल्ड यू, बुक्स आइदर मेक यू और दे ब्रेक यू। क्लासेस आपको रेगुलरली जो है वो लेनी ही लेनी है, और इसके ऊपर मैं बहुत फोकस करती हूँ दैट यू हैव टू मेक पर्सनलाइज्ड नोट्स। और हुआ भी वही, ऑफलाइन मोड में आपका पेपर हो रहा है, हाथ चलाना होगा भाई, हर बारी हाथ चलाना होगा, एक टिक से कुछ नहीं होगा, अब एफर्ट डालना पड़ेगा। एंड दिस इज व्हाट हैपेंस व्हेन यू आर मेकिंग नोट्स, एज आई टोल्ड यू दैट योर साइकोमोटर स्किल्स, एज आई टोल्ड यू कि आपका साइकोमोटर इन्वॉल्व हो रहा है, साइकोमोटर स्किल्स हो रहे हैं, कॉग्निटिव स्किल्स आपके इन्वॉल्व हो रहे हैं, आपके कोनेटिव या इफेक्टिव स्किल्स जो है वो हो रहे हैं। तो इसीलिए नोट्स बनाइए, आप बुक लीजिए, बुक को एक बारी पढ़ो, कॉन्सेप्ट को टीचर से सुनते हो, पढ़िए किताब को एक बारी, दूसरी रीडिंग में अंडरलाइन कीजिए,
तीसरी रीडिंग में आपने क्लास भी पढ़ी है, क्लास में भी छोटे छोटे नोट्स बनाए होंगे और आपने रीडिंग की है किताब से। तो जो आपने अंडरलाइन किया है उसको कॉन्सेप्ट फॉर्मुलेशन में आप जरूर नोट्स में लिखो, क्योंकि अगर आप नहीं लिखोगे आप पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। जब हम लिखते हैं तो चीजें याद रहती है। तो किताबें लाइफ लॉन्ग इन्वेस्टमेंट, किताबों से हेल्प लो, अच्छी किताबों से, अच्छे टीचर से, उनसे बार बार पढ़ के अंडरलाइन करके अपने कॉन्सेप्ट मैप्स बनाइए और उसके बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर प्रैक्टिस करिए। अगर आप मॉक करना चाहते हैं आप मॉक करिए, बहुत बढ़िया है, मॉक जरूरी भी होता है, लेकिन मॉक से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देती हूँ, क्योंकि मॉक्स बहुत स्टैंडर्डाइज लोग बनाते हैं, अच्छी बात है, लेकिन देयर इज स्टिल अ रूम फॉर एरर। बट पीवाईक्यू स्टैंडर्डाइज होते हैं, राइट? और जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, ये सब ज्यादा चेंज नहीं होते। कम्युनिकेशन थ्योरीज ये हमेशा रहेगी, हिस्ट्री आपको पढ़नी पड़ेगी आगे वाले सिलेबस के अंदर भी। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमेशा साथ लेके चलिए, वो सेट अटेम्प्ट करते रहिए। मॉक्स तो करिए करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने बहुत जरूरी है। यूनिट वाइज करिए, टॉपिक वाइज करिए, बट पीवाईक्यूज जितने ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए बेटर है। जो मिस्टेक्स हुई हैं इंश्योर करिए कि वो आप रिपीट ना करें, या जब मिस्टेक्स होती हैं तो एक दिन के बाद या 2 दिन के बाद आप रीअटेम्प्ट करिए सेम क्वेश्चन पेपर को, सेम मिस्टेक्स को, और देखिए कि आपने उसको रेक्टिफाई किया या नहीं किया। अब ये एक जोन है जो हम फॉलो करते हैं। अगर आपके 150 में से 90 क्वेश्चन प्लस आते हैं, इसका मतलब आप सही से जा रहे हैं। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करिए। ये मैं तब की बात कर रही हूँ अगर आप पेपर 1 पेपर 2, कोई भी आपका पेपर 2 है, एजुकेशन है या कोई भी है, आप एक अटेम्प्ट में कर रहे हो, अगर 90 से प्लस आ रहे हैं मतलब ग्रीन जोन में हो, ऐसे पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। अगर आपके 70 से 90 में आ रहे हैं मतलब यू बी बेटर वॉचफुल। करके ये एक्सपेरिमेंट करके देखिएगा आप, मैक्सिमम कितने ही आएंगे 70 और 90 के बीच में से। तो अगर ये हिसाब आ रहा है तो यहाँ तक पहुंचना है, क्योंकि यहाँ वाले को भी जब तक वो प्रैक्टिस, अगर आपके 90 प्लस आ रहे हैं इसका मतलब ये नहीं कि हाँ भाई अब मेरा होगा ही होगा। नो, इट मीन्स कीप प्रैक्टिसिंग मोर, यू आर गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। यहाँ का मतलब है कि आप कर तो रहे हो मेहनत, लेकिन बिना स्ट्रैटेजी के कर रहे हो। अगर आप 90 टू 70 के बीच में कर रहे हो, इसका मतलब आप हार्डवर्क तो कर रहे हैं, लेकिन आप स्ट्रैटेजी सही नहीं यूज कर रहे हो, क्योंकि ये वाला भी हार्डवर्क कर रहा है लेकिन ये स्ट्रैटेजी के साथ कर रहा है। तो आज हमने स्ट्रैटेजी डिस्कस की है कि पेपर 1 में स्पेसिफिकली आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। और ये वाले तो जिनके आ रहे हैं मतलब आपको सच में बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 70 बिलो या 70 या 90 टू 70। एंड लास्ट स्लाइड है, ज्यादा समय नहीं लेंगे, कि रिविजन और प्रैक्टिस। अभी समय ऐसा है कि मैं आपको यही सजेशन दूंगी कि कुछ भी पेपर 1 की अगर मैं बात करूंगी आज, सिर्फ पेपर 1 क्योंकि ज्यादा बच्चों को इम्पैक्ट करता है, कि कुछ भी नया एज लॉन्ग एज इन्वायरमेंट में है पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज लॉन्ग एज कभी कोई अभी तो पेपर भी बन चुके हैं आपके, राइट? तो जो बेसिक्स हैं, जैसे हमने प्रोटोकॉल्स की बात की, या डिजास्टर्स मिटिगेशन, या ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात की, या इकोसिस्टम के बारे में बात की, बस वहीं पे ध्यान बनाए रहिए। हायर एजुकेशन में जो किया है उसको करिए, कुछ भी आउटसाइड पढ़ने की जरूरत इस टाइम पे नहीं है। द ओनली थिंग दैट आई एम आस्किंग यू टू डू इज DI, प्रैक्टिस दिस। आपको मुश्किल लगेगी, अभी भी समय है, बस 7-8 कॉन्सेप्ट्स हैं, आपको उनको अच्छे से प्रैक्टिस करना है और आप DI में 10 नंबर ले आएंगे। और करना ही क्या है, सिर्फ 20 क्वेश्चंस ही तो सही होने चाहिए। आप जरा लॉजिस्टिक्स लगा के देखिएगा सेमिनार के बाद, अगर आप स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं आपके मिनिमम 35 प्लस, मिनिमम कह रही हूं मैं, मिनिमम 35 प्लस क्वेश्चंस आपके सही होंगे इफ यू आर फॉलोइंग द स्ट्रैटेजी दैट आई जस्ट टोल्ड यू। सो राइट नाउ नो न्यू टॉपिक्स, जस्ट रिवाइज 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 इफ यू वांट टू प्रैक्टिस DI। और आपको एक मैं रेशियो बता के जाती हूँ, 50% ऑफ योर सक्सेस डिपेंड्स ऑन रिविजन। ये नहीं कि ज्यादा से ज्यादा पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो और हमारा हो जाएगा, मैंने ये भी कवर कर लिया, मैंने वो भी नहीं। आप 70% सिलेबस भी कवर करते हो ना, लेकिन आप उसको कम से कम 3 या 4 बार ही रिवाइज करते हो, गुड, रादर देन कवरिंग 100%। पहले तो होता ही नहीं, 90% कवर कर रहे हो और रिवाइज ही नहीं कर रहे हो।
that is not going to help you. That's definitely you're going to fail at it. So ensure that आप रिवाइज करें, मिनिमम 3 to 4 times तो करें, और PYQ सेट्स की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करो. सो प्रैक्टिस इज द की. सो किसी को कोई भी और डाउट है, क्वेश्चन है, क्योंकि मैं अभी यहाँ पे एंड करूंगी. मुझे जो स्टूडेंट्स को बताना था वो मैंने बता दिया है, कौन से यूनिट्स पे फोकस करना है, किस पे आप छोड़ सकते हैं. और अब किसी को कोई भी डाउट है पूछ सकते हैं. आई एम ग्लैड कि बच्चे जुड़े हुए हैं अभी भी और सुन रहे हैं. इट्स नॉट इजी टू बी लिसनिंग टू अदर पीपल एंड बी क्वाइट. तो great to have you people to be listening so patiently. Yes, do we have questions? Ma'am, Yes, please. Yeah. I have compiled the list. So a person is asking, what is the age limit for applying for an assistant professor in any college or institute or See, university? there is as such no age limit. There are certain, as I told you कि इंडिया के अंदर क्या है, डिसेंट्रलाइजेशन है और एजुकेशन आ रही है कॉन्करेंट लिस्ट में. देर आर कॉलेजेस जहां पे 40 इयर्स तक आप एलिजिबल होते हो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए. कई कॉलेजेस ऐसे जो हैं 45 इयर्स तक भी मानते हैं. तो एज सच कोई सरकार ने या यूजीसी ने गाइडलाइंस ले नहीं किए कि मतलब हर कॉलेज के अंदर आपका एज लिमिट ये होगा. ये with experience, with students experience, my experience, this is my take, depends upon the college, depends upon the university, depends upon your experience also. Generally 40 or 45 years, 45 years तो generally लेके चलते हैं. Right, there's one more question. A person is asking, if I leave math parts, if calculation is too much, will it impact my selection? If you're too good in environment, if you're too good in higher education, if you're too good in logical reasoning, go for it. Because logical reasoning is one unit जो सबके बहुत students के छक्के छुड़ा देता है. So if you're good in that, if you're good in higher education, if you're super good in environment, go for it. Right. Now there's one more question. Somebody is saying, ma'am, ICT development और government initiative से भी questions आते हैं. Yes. बिल्कुल. अब आप देखिए स्वयं, अब जैसे मैं स्वयं की बात करूं तो अब ये जो टॉपिक है, स्वयं हो गया, मुक्स हो गए, राइट, OERs हो गया, ओपन एजुकेशनल रिसोर्स, अब ये कॉमन टॉपिक है. ये यूनिट 1 एंड यूनिट 10 इनका कॉमन टॉपिक है. ये आएगा ही आएगा. स्वयं प्रभा क्या हो गया, कौन से चैनल्स हैं, मूक्स क्या होते हैं, मूक्स के क्वाड्रेंट्स के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, OERs के ऊपर क्वेश्चन आ रहे हैं. तो यू हैव टू डू देम. दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. Right. One more question. मैम मैं PhD में एनरोल हूँ और मेरा एज 35 अबव है. मुझे सिर्फ असिस्टेंट प्रोफेसर ही सिलेक्ट करना है, लेकिन सेकंड कैटेगरी में असिस्टेंट प्रोफेसर सिलेक्ट करने पर PhD भी सिलेक्ट हो रहा है. इस सिचुएशन में क्या करें? Go for it. Go for Okay. it. Yeah. Now, one more question. If a student has completed PhD before NET and he has age, after PhD he passed NET with JRF, then will he get a scholarship? I didn't follow it. PhD हो गई है. PhD हो गई है एंड PhD के बाद नेट JRF दोनों क्लियर हुआ है, स्कॉलरशिप मिलेगा? अगर आप डबल PhD करते हो, अगर आप नई PhD शुरू करोगे, अब जो हो गया उसके लिए नहीं आपको मिलेगा ना JRF, आपको सर्टिफिकेट जरूर मिलेगा JRF का. लेकिन अगर आप डबल PhD करते हो, मतलब आप फिर से कोई रिसर्च करते हो, आप फिर से PhD में एनरोल होते हो, फिर आपको स्कॉलरशिप मिलेगी. राइट. ये नहीं कि आप कर चुके हो तो सरकार आपको 5 साल का पैसा देगी. एक और क्वेश्चन आता होता है कि कई स्टूडेंट्स हैं, दोज हु आर डूइंग देयर PhD, जो बीच में हैं, और वो पूछते हैं कि हमको अगर JRF होता है तो क्या हमको शुरू से पैसा मिलेगा. तो ऐसा नहीं होता है. जब से आपका JRF क्रैक होता है, सपोज आप 2 साल PhD में लगा चुके हो, तो उसके बाद आपका JRF क्रैक होता है. तो जिस दिन आप सबमिट करोगे अपना JRF का सर्टिफिकेट, उस दिन से आपको स्कॉलरशिप मिलनी शुरू हो जाती है.
ये भी एक डाउट होता है स्टूडेंट्स का. Right. One more question. Ancient Indian history of education. Ma'am, please provide video on this topic. So that is something else. I'll definitely do it. Right. One more question. Ma'am, किस यूनिट पर अधिक concentrate करें? ये लिखा था. ये तो रामबान है, इन दोनों के तो नाम के ऊपर यूनिट बना हुआ है, राइट. देन फॉलोड बाय कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन. दिस यू हैव टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर. देन ऑफ कोर्स मैथ का देखो, टैट बिट तो आपको मैंने बताया, परसेंटेज, अल्फा सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, रेशियो, प्रोपोर्शन, ये सब यूनिट 7 पे कर लो. एंड थोड़ा सा यूनिट 10 पे कर लो, थोड़ा 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 थोड़ा. 10 को और 8 को मैं मानती हूँ. तो ये दिस आई हैव यूनिट 2 फॉलोड बाय यूनिट 1 फॉलोड बाय यूनिट 3 यूनिट 4 5 7. देखो 5 क्वेश्चन इसमें पक्के हैं, ठीक है. 5 क्वेश्चन इसमें से पक्के हैं, 5 क्वेश्चन इसमें से पक्के हैं, 5 क्वेश्चन इसमें से पक्के हैं. देख लीजिए 20 तो यही हो गए. बाकी टैट बिट करोगे तो 35 प्लस आराम से हो जाएंगे. Okay, since we are running out of time, मैं अब लास्ट के 1-2 questions पूछ लेती हूँ मैम से. One question is there. मैम MA in education किया था. Is MEd necessary? No. MA एजुकेशन एंड MEd बोथ आर इक्वल, और ये UGC के गाइडलाइंस हैं. आप कहेंगे तो हम आपके साथ PDF भी उसका शेयर कर देंगे. और कई बच्चे कहते हैं कि हाँ हमने MEd किया है तो एक्स्ट्रा MA करने की जरूरत है या नहीं है. देखो ये क्लियर एक इंडिकेशन आया है गवर्नमेंट की तरफ से कि अगर आप MEd आपने किया है तो MA आप ना भी करें तो भी चलेगा. लेकिन आई कीप द स्टूडेंट्स इन अ वेरी क्लियर पिक्चर. जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो बड़े बड़े महारथी आते हैं जिनके पास MA मास्टर्स होती है. और वहां पे अगर आप इस मूड से जाएंगे कि हाँ मैम ने बोला था कि MEd इज इनफ, तो वहां पे उनका API स्कोर आपसे ज्यादा हो जाएगा. तो बेटर है कि डिग्रीज को अपने साथ लेके चले. दैट इज ऑलवेज बेटर. एंड that's about it. और दूसरा मैं this I would like to tell everybody that do ensure that जो भी आपने वेबिनार से थोड़ा बहुत सीखा है, मैंने आपसे सीखा है, spread it to as many students as possible across all disciplines. क्योंकि आप बात करेंगे, knowledgeable बात करते हैं, आप भी सीखेंगे, वो भी सीखेंगे. And help us in इंश्योरिंग कि हमारा जो इनिशिएटिव है, हमारा जो एथिक है, जो हमारा मोटो है वर्क करने का, वो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे. एंड दैट वी आर डूइंग विद अवर वर्क थ्रू बुक्स. सो एंश्योर that you are telling, because as I told you there's so much of pompous around paper 1. इतना ज्यादा I would say clutter है paper 1 के अराउंड, और मैक्सिमम बच्चे उलझ के रह जाते हैं. तो जो भी हमारा मोटो है that give the best quality of education through our books to the maximum number of students in the most affordable prices. So ensure that you are sharing the book, you're sharing whatever knowledge you've gathered through the webinar with as many students as possible. Then you'll be helping us in our motive. Yeah, Tamanna. Right. Now, what is the age limit for applying for an assistant professor in any college, university? As long as they have not given you a particular जो परफॉर्मा होता है, जो मेमोरेंडम होता है, उसके अंदर लिखा होता है. UGC की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, as I told you, लेकिन कॉलेज टू कॉलेज डिफर करता है. Like I can tell you गवर्नमेंट कॉलेजेस इन चंडीगढ़ वो 45 कई क्राइटेरिया रखते हैं. कई कॉलेज अगेन गवर्नमेंट कॉलेज में मैंने 38 इयर्स भी देखा हुआ है. 38 इयर्स वो मानते हैं. सो एज सच एज आई टोल्ड यू दैट एजुकेशन इज डिसेंट्रलाइज्ड एंड कॉन्करेंट लिस्ट. तो UGC के अंडर एज सच कोई गाइडलाइन नहीं है एज लिमिट को लेकिन स्टेट्स टू स्टेट रेफर या डिफर करता है. Right, just 2 last questions. One is, मैम क्या पॉसिबल है कि अगर एक ही दिन सारे पेपर होंगे तो पेपर इजी टू मॉडरेट होगा? एंड one last question is that मैम क्या PYQs की पेपर 1 की बुक भी एस्टान से ही आएगी? ओके, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है तमन्ना. डू यू थिंक सो? लेट मी टेल यू. Absolutely.
मैं और तमन्ना तो हम लोग बहुत डिस्कस करते हैं, इनफैक्ट एस चांद में सभी हम लोग बहुत आपस में डिस्कस करते हैं कि कैसे बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड करें, और हम लोग हंस रहे थे। हम हंस इसलिए रहे थे क्योंकि कई पब्लिकेशन हाउसेस है वहां पे, जो स्पेशल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक है उसमें लिखा है 2000+ क्वेश्चंस आर देयर, कहीं पे लिखा है 2500 क्वेश्चंस आर देयर, और हम लोग हंसते हैं कि हमारी थ्योरी की किताब के अंदर 3700 क्वेश्चंस प्लस हमने दिए हुए, प्लस हम लोग हमारी जो ऐप है टेस्ट कोच उसके अंदर अलग से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। हाउएवर बहुत ही जल्दी हमारी जो आप डिमांड कर रहे हैं उनके ऊपर बुक्स भी आने वाली है, बट दिस इज जस्ट एन आई ओपनर फॉर ऑल ऑफ यू दैट जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक्स है सभी पब्लिकेशन हाउसेस के, सभी बोल रही हूँ, उसमें जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिखे हैं उनको आप हमारी थ्योरी वाली बुक से कंपेयर कर लेना, उसके अंदर आपको ज्यादा मिल जाएंगे। एक चीज मैं एज अ एजुकेटर आप सबको बोलना चाहती हूँ कि इन केस कभी भी एमसीक्यू में आपको डाउट लगता है किसी भी आंसर के ऊपर, रीच आउट टू मी। कभी कभी मिस प्रिंटिंग होती है, राइट, कभी कभी हो सकता है आंसर सही हो आपको उस पर डाउट हो, सो वेन एवर यू फाइंड अ क्वेश्चन लाइक दिस, learn about it, reach out to me or to Tamanna, and we will definitely tell you how to handle it. Yeah. That is it for today, ma'am. Thank you for this informative session. I would urge all the attendees to, let us wrap up this session for today because ma'am has had a very long day. You can, I have given you an email ID where you can share your doubts and, queries. I will definitely relay it to ma'am, and of course, you'll get an answer. Let us all thank ma'am for this wonderful informative session. I've shared the links to her books in the chat box. Please copy it before you go because this will not stay. Thank you, ma'am. Thank you for your help. We will be closing the session now. I really want to have the last line. I really thank you. I really thank the S-Chan group, and most importantly, these lovely students. They know it. Jitna marji ma'am tired ho, they are my energy boosters. So thanks to each of my students for joining and listening to me for so long. And yeah, over to you, Tamanna, for closing. We will get in touch again. Of course, we'll share more such webinars as and when we plan them. I look forward to hosting these kind of educational and informative sessions again. Thank you so much for joining us today. We will wrap up this session. Great meeting you all. Bye-bye.